Jai Shri Krishna, everyone. I'm Nikita Mundra. I'm a chartered accountant myself, qualified in the year 2011, and I worked with Ernst& Young for 2 years in the taxation team. Since the last 8 years, I've been handling accounts and taxation of our family and associates. I'm very happy to be associated with MVPM since the last 1 year. Just a small request, I think everyone is already on mute, so please keep yourselves on mute throughout the meeting. And any questions can be please put in the chat box. We'll be taking all the questions towards the end. So now coming to our organization, Maheshwari Vidya Pracharak Mandal, MVPM as we call it. It is based in Pune. It's a 90-year young charitable organization solely dedicated to the cause of education. And we had started with a girls' hostel in Pune, and now we have graduated to run several scholarship schemes, skill development centers, colleges, schools, hostels across Solapur and other places. And during the last year, amid the pandemic, we have also done a lot of webinars on various informative topics like COVID management, business growth, etc. In 2012, MVPM also constituted a Scholar Award. It instituted a Scholar Award for academic excellence in advanced studies. And since 2012, around 100 exceptional scholars from reputed institutions like IITs, IIMs, Yale University, Cambridge Universities, and all of our professionals, CAs, engineers, medicos, just to name a few, they have all been our awardees. And in fact, I'm happy to inform you all that I have a long association with MVPM, and I studied in Pune 3 years in the MVPM hostel, and I've been a direct beneficiary of the MVPM activities. To better describe the activities of MVPM, I would just like to share a small video. शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा That was about MVPM. And now moving to our topic for today, financial literacy for women.
You would all appreciate that during the last 1 year amidst this pandemic, it has become all the more important that all of our family members are aware of the finances of the family. So, keeping this in mind, this webinar has been planned to promote financial awareness and literacy among our women. I would now like to introduce CA Veena Chandak. Veena ji herself is an MVPM alumni, and she is a senior chartered accountant with 18 years of experience in the fields of corporate finance, audit, and taxation. She will be moderating today's session, and so she has worked with independent equity research firms for equity analysis and portfolio management. And currently, she's a senior partner at a chartered accountant firm, VDA and Associates at Pune. Just handing over to you, Veena ji. Thank you, Nikita, for this wonderful introduction. And I would like to thank MVPM and MVPM Scholars Committee for giving me an opportunity to be moderator for this wonderful session on financial literacy. ये जब financial literacy word आता है ना, तो मन में कई सवाल आते हैं कि भाई ये है क्या? And that is again especially for women. So we women undertake various responsibilities. हम डे टू डे कई जिम्मेदारियां निभाती है, जैसे घर संभालना, बच्चे संभालना, रिलेशंस निभाना, बाहर के काम करना, वर्क प्रेशर हैंडल करना. लेकिन जब बात पैसे हैंडल करने की होती है ना, तो कई बार हमें एक कदम पीछे हटा देती है. Why so? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम शायद एक ठीक से कर नहीं पाएंगे, या फिर हमें लगता है कि हमारे लिए है कोई करने वाला, तो हमें तो कोई जरूरत नहीं करने की. तो लेकिन ऐसे कई सवाल आते हैं कि जिस वजह से हम फाइनेंस हैंडल करने के पीछे थोड़ा सा हम रुक जाते हैं. This pandemic is it is a right time to take a step forward to understand your finances better. So to take this forward, how finance works, we have wonderful speaker today with us, Kalyani Rathi Maheshwari. So let me take a moment to introduce Kalyani. Kalyani is an MBA in finance, and she has about 50+ years of experience in investment management and advisory. She has worked with MNCs like Daimler India Private Limited, which is the makers of Mercedes-Benz cars, and DSP Merrill Lynch, managing their treasury investments. And for the past 10 years, she is an active, independent financial advisor, catering to personal finance needs of individuals. Welcome, Kalyani. Kalyani, please unmute yourself. Yeah. Hi. Thank you, Veena. Hello. So, yeah. कल्याणी हॉस्टल की स्टूडेंट रह चुकी है, तो सबसे मेन इंट्रोडक्शन है कल्याणी का. Yes. तो जब कल्याणी जब पर्सनल फाइनेंस हैंडल करने की बात आती है ना, तो मन में कई सवाल उठते हैं. तो इन सवाल को नजर रखते हुए कल्याणी ने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, जो कि वो प्रेजेंट करेगी और साइमल्टेनियसली हमारे सवालों को जवाब देगी. थैंक यू वीना, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू. और सबसे बड़ा थैंक यू MVPM और MVPM स्कॉलर्स कमेटी का, जो हमको ये मौका दिया यहाँ पर आके मैं कुछ नॉलेज शेयर कर पाऊँ. हालांकि यहाँ बहुत बड़े बड़े बहुत जानकार लोग हैं, पर ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर वुमेन जो हमने टॉपिक चूज किया है, ये पिछले साल 1.5 साल में हमें बहुत ही रेलेवेंट लगने लगा कि ये बहुत ज़रूरी है. जो आसपास में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, एक तो हेल्थ इश्यूज है और अदर उसके बाद ये मनी एक वरी नहीं होनी चाहिए हमारे लाइफ में. उसको थोड़ा विद्या का प्रचार करने में जो संस्था जुड़ी है, उसी फाइनेंशियल लिटरेसी सेम थीम में हम कर रहे हैं. इसकी बहुत खुशी है और यहाँ मौका दिया बात करने का. तो मैं अभी और कोई देर ना करते हुए हम प्रेजेंटेशन से पर स्टार्ट करते हैं. तो कल्याणी, लेट अस स्टार्ट. स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरा. हाँ, तो चलो आज कई बार वो संडे को एक फेमस प्रोग्राम आता है मन की बात रेडियो पे, तो लेकिन आज हम धन की बात से शुरू करते हैं.
So let's start with our first question. वीणा, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है. Is it audible now? Yeah, please switch off the video. Yeah. I think I should switch off the video. There is some problem. तो मैं बोल रही थी कल्याणी कि संडे को एक फेमस प्रोग्राम आता है अपना रेडियो पे, मन की बात. तो आज हम धन की बात करेंगे. तो सबसे पहले सवाल सबके माइंड में ये आता है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, इसका क्या महत्व है और हमें क्यों करना चाहिए. बिल्कुल. तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत जरूरी है. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग म्यूट पे हो जाइए. फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि सारे सदियों से, बहुत सालों से या पहले से, कि लेडीज इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेती हैं. और उसमें कोई रीजन शायद अपब्रिंगिंग का पार्ट हो सकता है, या हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है कि जिससे वो अपने आप को दूर रख रही हैं. खुद अपने प्रोफेशन में काफी माहिर रहेंगी, बट जब फाइनेंसेस की बात आती है तब वो थोड़ा सा एक कदम पीछे रहती है. तो अब स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे हम समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है. सबसे पहले तो आज हम लोग यहाँ मिले क्यों है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, करना क्या है. तो बहुत बेसिक से जाएंगे. मैं कोशिश करूंगी कि इसमें मैं छोटे मोटे अपने आस पड़ोस के ही जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स दूं, ताकि ये और समझने में इजी हो जाए. तो ये क्यों जरूरी है. सबसे पहले तो हर कोई एग्री करेगा यहाँ पे कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई हम कहते हैं, दिन ब दिन बिल्कुल बढ़ती जा रही है, कभी कम नहीं होती. आज कोई चीज होगी 100 रुपए की, तो अगले साल वो उससे महंगी ही मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी. तो ये जो चीज है, इसको टैकल करने के लिए हमको अपने फाइनेंसेस बहुत एडवांस में इसको प्लान करके हम आगे चलेंगे, तो ये चीज को हम महंगाई से आगे थोड़ा निकल पाएंगे. फिर है कि हमको एक वेल्थ क्रिएट करनी है. हमको कुछ, हम इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो हमको बिल्कुल क्यों कमा रहे हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं. एक तो डे टू डे अपनी नीड्स, जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और कुछ बेटर लाइफस्टाइल, बेटर वेल्थ क्रिएशन के लिए हमको इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम वो अचीव कर सकते हैं. बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हर कोई चाहता है कि मैं आज जहां पर हूँ उससे एक कदम मैं आगे बढ़ूं, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ूं. तो उसके लिए प्लानिंग, आप सब एग्री करोगे कि कोई भी काम हमको करना है तो वो प्लानिंग बहुत जरूरी है. आज का ये प्रोग्राम भी सेटअप करने के लिए काफी प्लानिंग हुई है, इसके पीछे काफी मेहनत हुई है. तो प्लानिंग, हर चीज, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर चीज में प्लानिंग जरूरी है. सबसे बड़ी बात कि इमरजेंसीज के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना है. ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, भगवान ना करे किसी पे आए, पर जिन पर आती है उनको बहुत अच्छे से वो ये समझ पाएंगे कि कितना जरूरी. तब लगता है कि काश ये कुछ और अच्छे से प्लान होता पहले से, या कुछ और हमारे पास पैसिव इनकम के ऑप्शंस होते, जो एक्टिवली, भले ही हम लेडीज जाकर जॉब करें ना करें, पर एक हम ऐसा सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे प्लान करके क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो हमारे लिए हमारी पैसों की ग्रोथ करता रहे. और हर कोई एग्री ये भी करेगा कि हम बोलते हैं कि पैसे से हर खुशी नहीं मिलती, पर हाँ, बहुत सारी खुशियां पैसों से ही मिलती है. हर लाइफ में हर किसी के गोल्स रहते हैं, तो गोल्स अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा बीच में आता ही है. और ये एक होता है कि एक एडिशनल इनकम हम जनरेट कर सकते हैं अपने घर में, अगर ढंग से हम प्लान करें. अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न. तो बिल्कुल हम सेविंग करके भी, इट्स एज गुड एज अर्निंग, अगर हम सेव कर पा रहे हैं अपने फैमिली का पैसा तो. एंड लेडीज को तो ये सेविंग की बात बताने का यही नहीं, दे आर वेरी गुड मनी मैनेजर्स ऑलरेडी. घर जो चलाती हैं, जो बजट में चलाती हैं, वो ऑलरेडी वो कर रही हैं काम. पर ये फॉर्मल सिस्टम में, फॉर्मल फाइनेंशियल जो हम ये थोड़े से टर्म्स हैं, तो ये सब इस दायरे में हम आज बात करेंगे, ताकि ये सारा
सुन बिल्कुल आपको जानकारी मिले इसकी, आपको नया नया ऑलरेडी सारी स्किल्स तरीके से के मैटर में आज भी कैसे अप्लाई करनी है हम यहाँ। और फाइनल आई हैव प्रोवाइडेड फॉर दिस एक्सपेंस, या इस चीज को मैंने ध्यान में रखा है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमको पीस ऑफ माइंड मिलता है। और जब कंट्रोल में रहता है तो सारी चीज अगेन वही है कि हर चीज पीस ऑफ माइंड पे आके रुकती है, कि फाइनली जो भी हम कर रहे हैं एक पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हैं। तो जब चीज हमारे कंट्रोल में हो, जब प्लान्ड हो, तब वो फाइनली इट अटेन्स फॉर टू हैप्पीनेस और वेल बीइंग अपने लिए। तो अब ये सब तो हो गई बातें, क्यों करना है, क्या मतलब इसमें पॉइंटर्स थे, अब कैसे करना है, मतलब इसको ये सब बात तो हो गई, पर इसको स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आता है कि कोई भी फाइनेंशियल प्लान अपने लिए एक प्लान, जब भी एक एग्जांपल दूंगी, घर में कोई गेस्ट आते हैं, डिनर के लिए हमने किसी को इनवाइट किया है, तो हम एक मेन्यू पहले से प्लान करते हैं। हम वो लोग आने के बाद नहीं सोचते कि आप क्या बनाएंगे। इफ अगर कोई बिना बताए आ जाए वो अलग बात है, पर किसी को हमने इनवाइट किया, हमको पता है ये बात होने वाली है, ये गेस्ट आने वाले हैं, तो वी प्लान इट वेल इन एडवांस। हम सारी चीजें जो भी मेन्यू में रहेगा, किसके साथ क्या जाता है, कौन से प्लानिंग करनी है, कब बनेगा खाना, कौन सा कब बनेगा, कौन सा बाहर से आएगा, ये सारी चीजें हम पहले से प्लान करते हैं। तो एक वैसे ही इसमें है कि आप अपने पास, अपने घर में आपके पास क्या है, आपका फाइनेंसेस कैसे हैं, पहले उसको समझिए कि हम किस सिचुएशन पे हैं। हमको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, पर हम कौन सी सीढ़ी पर खड़े हैं, हमको यहाँ से आगे कहाँ जाना है, वो सामने एक ध्येय रखना जरूरी है। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, कि आप जो भी घर में है, यू कैन स्टार्ट विद दैट, कि समझिए अभी हमारे पास कोई भी घर में इन्वेस्टमेंट्स होगी या बैंक अकाउंट्स होंगे, तो हमको बिल्कुल वो समझना है कि ये कहाँ पर है हम आज के तारीख में। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करने हैं। कोई भी चीज हम जब सामने प्लान करते हैं तो सामने एक ध्येय होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट डिसाइड करके अगर उसकी और बढ़ेंगे तो बिल्कुल मीनिंगफुल ग्रोथ होगी हमारी, उस डायरेक्शन में ग्रोथ होगी जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं। हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो फाइनेंशियल एक गोल, टारगेट रहना जरूरी है। और मेरे हिसाब से फाइनेंशियल गोल बिल्कुल लाइफ गोल की तरह होते हैं, कि हमको कुछ सर्टेन एज के बाद कुछ अचीव करना है, या हमारे बच्चों के लिए कुछ करना है, हमारी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो ये सारे हमारे गोल्स है जिसमें पैसे भी इन्वॉल्व है। तो ये गोल्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। कंपेयर एंड स्टडी द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दीज गोल्स। अभी कोई भी गोल होगा, गोल एज सिंपल एज आपको वेकेशन प्लान करनी है, या आपको रिटायरमेंट के लिए आपके पैसे इकट्ठा करने हैं, या बच्चों के एजुकेशन के लिए इकट्ठा करने हैं, तो ये सारे गोल्स यहाँ पे आपके हो सकते हैं। और उसके लिए क्या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। मार्केट का मतलब है कि जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है हमारे, प्रॉपरली कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लीज म्यूट करिए, कोई लोग अनम्यूट पर है। Geeta, can you please mute everyone? तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमको इवैल्यूएट करने हैं कि हमारे पास क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल है। एक खुद के लिए प्लान बनाना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। अब प्लानिंग हम धीरे धीरे समझेंगे कि एग्जैक्टली ये प्लान है क्या। जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा हम इसमें समझेंगे कि ये प्लान बनाना कैसे है क्या। और इस प्लान को रिव्यू करना है, ये बहुत जरूरी चीज है कि बस आज बन गया और हमने बाद में कभी देखा ही नहीं वो खोलकर। तो ये लिखना पेपर पे जरूरी है, अपने आंखों के सामने रखना जरूरी है। और कहीं कोई कमियां रह रही हो या कोई कुछ हमको लग रहा है कि टाइम के साथ हमको बदलना है, तो वहां पे वो रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। भले ही साल भर में करे, 2 साल में लगे, और जब भी आपको लगे कुछ चेंजेस यहाँ पे जरूरी है तो वो चेंजेस करने बहुत जरूरी है। क्योंकि समय के साथ आप सब अग्री करेंगे कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। तो मतलब जो चेंज है उसके साथ हमको चेंज तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम वैसे भी पीछे छूटने वाले हैं। तो ये चेंजेस जो है उसके हिसाब से हमको थोड़ा पीरियोडिकली इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं है। और अगर जरूरत पड़े, और ये सब आज टेक्निकल टर्म्स में भी आप सुनेंगे, सारे जो है यहाँ पर लेडीज और यंगस्टर्स जो भी ग्रुप में है सब सुनेंगे।
बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसी पे ध्यान दीजिए, बाकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कैसे करना है, कहाँ करना है, उसके लिए काफी सारे एडवाइजर्स आपको अवेलेबल है, काफी जगह पे आपको हेल्प मिल जाएगी उस चीज को कि क्या करना है। पर ये जो खुद का सिचुएशन इवैल्यूएट करके खुद के गोल्स डिसाइड करके उस दिशा में काम करना है, बिल्कुल ये यहाँ पे जरूरी बात है। दैट विल बी द की टेक अवे फ्रॉम टुडेज टॉक। या वेरी वेल सेड कल्याणी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। और एक सेकंड बेसिक सवाल ये आता है कि आजकल काफी कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एंड ये पैंडेमिक सिचुएशन में तो हमने काफी देखा है कि कई लोग डिजिटल वॉलेट से या फिर यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट और कई बार ऐसा होता है कि हम लेडीज के मन में कहीं ऐसा लगता है कि यार ये सेफ पेमेंट मोड है क्या, या इसमें कोई फ्रॉड हो सकता है क्या, हाउ सेफ इट इज लाइक। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? या ये बहुत, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, फाइनली आएगा सारा फॉर्मल जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में, जो भी हम बैंक्स की समझना, यहाँ समझ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जब बैंक में पैसा जाएगा, आज हम उसी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बैंक के थ्रू होता है, जो हार्ड अर्न्ड मनी है, जो आपके बिजनेस या सैलरी या कोई और प्रोफेशन से आ रहा है, जो बैंक में जा रहा है, उसके लिए क्या एवेन्यूज अवेलेबल है। तो ये थोड़ा बैंकिंग का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। अब डीमोनेटाइजेशन के वक्त हमने समझा था, देखा था कि कितना लेडीज के पास या और भी लोगों के पास जैसे जो कैश था, जो बस उनको निकाल के हैंड ओवर करना पड़ा, फाइनली गया वो बैंक में, बट उनको जो पहले उस कंट्रोल लग रहा था कि ये कैश मेरा है या मेरे पास है, तो अब वो कंट्रोल से शायद निकल गया है। तो अब ये बहुत जरूरी है वापस समय के साथ कि आपको बैंकिंग सीखना बहुत जरूरी है। जो न्यू एज पेमेंट गेटवेज आ गए हैं, ये सब इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनली तो अब धीरे धीरे हम पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम में ही ये सारा काम होगा। तो समय के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैंकिंग जो अलग अलग चैनल्स हैं हमारे, जो हम कन्वेंशनली पहले से यूज करते आ रहे हैं और जो अब नए हो गए हैं, उनके बारे में एक क्विकली थोड़ा ओवरव्यू उसका देखते हैं। पहले तो हमारे कन्वेंशनल चैनल्स में हमने देखा कि पहले ब्रांचेस होती हैं बैंक की, हर जगह जगह आपको आपकी बैंक की ब्रांचेस दिखेंगी। तो ब्रांचेस में है कि आप फिजिकली जाके जो भी आपका कैश डिपॉजिट, विड्रॉवल या और भी कोई आपको लोन लेने हो या चेक बुक ऑर्डर करनी हो, आप बैंक ब्रांच जाके करते हो, वो होती है ब्रांच बैंकिंग। फिर एक आपके पास कॉल सेंटर्स के नंबर होते हैं, जहाँ पे आप कॉल करके आप उनको रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो, जो भी आपको वहाँ पे क्वेरी होगी या कुछ आपको पता जानना होगा, आपके बैलेंसेस जानने होंगे। तो कॉल सेंटर, आपके हर बैंक का एक कॉल सेंटर नंबर होता है, वो यहाँ पे मतलब इस वो कॉल सेंटर्स वो हेल्प करते हैं आपको, बैठकर घर पे बैठ के फोन पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बैंक का, अब मैं यहाँ पे एक मिनट पॉज लेके हम सोचेंगे, लेडीज को प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, वो प्लीज आप मे बी इस सेशन के बाद अगर मैं आपको कुछ थोड़ा भी इंस्पायर कर पाऊँ, तो आप प्लीज घर जाके वो देखिए, नोट करिए आपका कहाँ है, कौन सी बैंक में है, उसके कॉल सेंटर नंबर क्या है, प्लीज अपने मोबाइल में उसको सेव करिए। कभी भी कुछ काम होगा तो ये बहुत हैंडी पड़ता है, कभी कुछ हमारा खो जाता है, कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चेक बुक या कुछ, तो ये हैंडी रहने, ये नंबर्स बहुत जरूरी है, आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी ब्रांच में कहाँ आपका अकाउंट है। तो ये प्लीज जानकारी आप नोट करिए। एटीएम्स रहते हैं जहां से इजीली आप एटीएम कार्ड के थ्रू आप कैश विड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, और ये कुछ कुछ बेसिक सर्विसेज यहाँ पे मिलती है। तो ये सारे हो गए कन्वेंशनल तरीके। पर जो अब धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम डिजिटल चैनल्स पे मूव करें। यहाँ पे ये सब जो तरीके हैं, ये हैंडल करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है बैंक्स के लिए, ब्रांच चलाना, कॉल सेंटर्स चलाना, तो वो प्रमोट कर रहे हैं कि आप डिजिटली करिए। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है और बहुत क्विक भी है, इजीली ये हो जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक आपका मोबाइल ऐप आप अपने बैंक का यहाँ फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। उस मोबाइल ऐप पे वो सारी आपको बैंक बैलेंसेस या आपके कुछ ट्रांजैक्शंस बेसिक सारे आप यहाँ पे कर पाओगे। पर इसका भी लॉगिन आईडी, पासवर्ड होता है, जो आपको ध्यान से बिल्कुल ध्यान में रखना है, उसको सेव करना है और बहुत केयरफुली यूज करना है। और दूसरा और एक तरीका है इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है कि आप उस बैंक की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिलता है आपको बैंक से, पासवर्ड आप अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो, और इंटरनेट की वेबसाइट, वहाँ उनकी वेबसाइट पर जाकर आप लॉग इन करते हो और वहां से अपना अकाउंट पूरा
आप ट्रांजैक्शंस करते हो। उसमें सर्विसेज भी मिलती है और फाइनेंशियल ये जो पैसे ट्रांसफर करना, आना, लेना देना और कुछ इन्वेस्टमेंट्स, एफडी, सारा वहां से हो सकता है, ब्रांच जाने की जरूरत। ऑलमोस्ट बहुत सारे काम, मोर देन 90% में भी यहाँ इस इंटरनेट बैंकिंग से या मोबाइल ऐप से हो जाते हैं। पर अब और दो नए यहाँ पर हम पिछले 1.5-2 साल में देखा होगा कि हम ये डिजिटल वॉलेट्स, ये पेटीएम, जीपे, ये फोन पे, ये सब हम यूज कर रहे हैं। ये सब होते क्या है? अब ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ाने के लिए ये सर्विसेज आई है अभी, ये जिससे बहुत फास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं और छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करने के लिए भी ये बहुत काम आते हैं। तो यूपीआई जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो होता है, जीपे जिस टेक्नोलॉजी पे चलता है या इस पे, और आपके बैंक अकाउंट से और वो यूपीआई आईडी में लिंक हो जाता है। तो अगर आपको दूसरों, किसी जिसको पेमेंट करना हो, अगर उसका आपको यूपीआई आईडी पता हो, तो आप डायरेक्टली उसका आईडी अपने उस यूपीआई, जो आपका एक ऐप होता है उसको डाउनलोड करना पड़ता है, उस ऐप से आप अपने आईडी से उसके आईडी में बहुत इजीली घर बैठे बैठे बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। जिसके लिए अभी बहुत बड़े इसमें मात्रा में ये यूज कर रहे हैं लोग। और दूसरा है वॉलेट्स। अब वॉलेट्स क्या होता है? वॉलेट्स बिल्कुल अपनी पर्स के जैसा है। जैसे बैंक से या अपने तिजोरी से पैसे निकाल के हम पर्स में रख लेंगे, बस इसी तरह ये वॉलेट्स काम करते हैं। बैंक से निकाल के उस डिजिटल वॉलेट में आपने पैसे रख लिए हैं, और बस वॉलेट पर वही आता है, एक कंपनी के वॉलेट से दूसरे, सेम कंपनी के दूसरे वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर पेटीएम वॉलेट मेरे पास है और किसी और के पास भी वही है, तो पेटीएम टू पेटीएम वॉलेट में मैं इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ, और वो भी ट्रांजैक्शन इजी हो जाता है। और यूपीआई में ये होता है कि आप बैंक टू बैंक वो पैसा जाता है, डायरेक्टली बैंक में जाता है, वॉलेट में नहीं आता। सो ये डिजिटल मोड्स हैं। अब यहाँ पे जब वीना आपने पूछा कि सेफ्टी क्या है, ये लेडीज को बहुत डर लगता है यहाँ पे मोबाइल ऐप और ये सब इंटरनेट और यूपीआई की, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो थोड़ी सी एक सेफ बैंकिंग यहाँ पे मैं पॉइंटर्स आपको देना चाहूंगी। क्या बेसिक चीजें आप ध्यान में रखिए तो ये फ्रॉड से आप बच पाओगे। आप इंश्योर करिए कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप रखिए। कॉमनली हम रखते हैं कि अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ अटैच करके आपने पासवर्ड बना लिया, बट ये थोड़ा रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई कोई भी कर सकता है कि नेम एंड डेट ऑफ बर्थ बहुत एकदम पॉपुलर कॉम्बिनेशन है, तो इसको अवॉइड करिए इसको रखना। आप कुछ ऐसा रखिए जो कोई गेस ना कर पाए, और इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करके रखिए। और ये आपको भूलने का डर है तो, और पासवर्ड आपको एक जगह आप लिख लीजिए, या लिखने से भी अब ये बेटर है कि वो शायद वो नोटबुक या किसी के हाथ में लग जाए या कुछ। तो आजकल अपने कंप्यूटर पे भी आप इसको एक्सेल शीट में कहीं सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार चेंज करने के लिए बोलते हैं, तो वहां आप चेंज कर सकते हो और वो एक्सेल शीट को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको खुद को आपका मैकेनिज्म डिवाइस करना है। जैसे मतलब आप अगर तिजोरी की चाबी आपकी आप कहीं छुपा के रखना जानते हो, तो ये भी पासवर्ड्स आई थिंक आप हैंडल कर लोगे। और जब भी कोई वेबसाइट पे कहीं जाके आपको कुछ पेमेंट करना है, तो प्लीज कहीं से कोई आई हुई लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करने की जगह उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस टाइप करिए, आप बैंक का पूरा एड्रेस टाइप करिए, ताकि आप सिक्योर जगह पे जाओ। जस्ट अ सेकंड, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस कि आप ये जो सेफ बैंकिंग टिप्स है आप नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग द सेशन आपको जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, गो अहेड कल्याणी। तो बैंक से कभी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑलवेज एडवाइजेबल आप बिल्कुल वहां पे बैंक की एड्रेस टाइप करिए, जहाँ पे इंटरनेट पे आपको एक कॉलम दिया हुआ रहता है वेबसाइट एड्रेस करने का, और फिर वहां से पेमेंट। और एटीएम कार्ड जो आप यूज करते हो कैश विड्रॉल के लिए, उसके और पासवर्ड्स है, इंटरनेट बैंकिंग, ओटीपीज है, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आरबीआई बहुत एग्रेसिवली इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि डू नॉट शेयर। ये बिल्कुल सच है कि कोई भी अगर बैंक एम्प्लॉय करके भी आपको फोन आता है कि ये हमको चाहिए है या कुछ केवाईसी अपडेट करना है आपका या कुछ, प्लीज डोंट बिलीव, ये ओटीपी किसी को नहीं चाहिए होता है, ये आपके पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए है। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हम देखते हैं कि कहीं फ्री वाईफाई मिलेगा तो हम तुरंत उस फ्री वाईफाई पे लॉगिन कर कर हम एयरपोर्ट्स पे वगैरह की हम उससे यूज करना चाहते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, कोई इंटरनेट पे कोई चीज ढूंढनी है, सर्च करनी है, सिर्फ थोड़ा देखना है इधर उधर, तो ठीक है।
पर प्लीज उस वाईफाई पे, फ्री वाले पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अपने पेमेंट्स वगैरह कुछ ना करें, कोई भी वहां खोले ना, क्योंकि वो सिक्योर नहीं रहते हैं, वहां पे सेफ्टी नहीं होती है। आपको बिल्कुल आपका खुद का जो डेटा है, आपका जो कंपनी, फोन कंपनी ने प्रोवाइड किया, उस डेटा पे ही आप करें जो भी आपको करना हो। फ्री वाईफाई पे पैसों का काम बिल्कुल ना करें। और ये क्रेडिट कार्ड्स, ये डेबिट कार्ड्स जो इंटरनेशनल रहते हैं, यहाँ पे लिमिट्स होती है, आप बिल्कुल लिमिट लगा सकते हो, डोमेस्टिक लिमिट्स, इंटरनेशनल लिमिट आप बिल्कुल लगा सकते हो। अब जैसे हम लॉकडाउन में हैं और कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसमें ये बनता है कि आप उस पर लिमिट सेट कर दें या डिजेबल कर दें उसको, कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल अभी नहीं कर रहे हैं, तो हम लिमिट उसको बंद ही कर, डीएक्टिवेट कर देंगे, तो कहीं दूसरी जगह बैठ के कोई और फ्रॉड ना कर पाए उस कार्ड पे। क्योंकि जो फ्रॉड करते हैं वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से वो हमारे अकाउंट से पैसे गए हैं। और भी अगर गलती से फिर भी कुछ हो जाए, कार्ड या पर्स खो गई हो, या प्लीज बैंक को तुरंत, ये कॉल सेंटर नंबर जो मैंने आपको कहा कि आपके पास रहना जरूरी है फोन में, तब भी आप बैंक को तुरंत कॉल कर कर वो ब्लॉक करा पाएंगे। या कोई और दूसरा फ्रॉड हुआ हो तो प्लीज बैंक से आप टच में रहिए, और उनसे वो आपकी जो भी कंप्लेंट है वहां रजिस्टर जरूर करवाइए, दे विल बी एबल टू हेल्प यू। कौन बोल Yes, Veena. Please, I will again request everyone to mute everyone. Very wonderful information, Kalyani. फिर अब बात आती है सेविंग्स की। हम लेडीज सेविंग्स करने में तो बहुत माहिर है। कहीं सब्जी लेने जाओ, अगर 110 हुआ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेडी 110 रुपए देगी, बराबर 100 रुपए देगी। यानी 10% तो सेविंग हम ऐसे ही कर लेते हैं। अगर उसने पैसे कम भी नहीं किए तो 2 एडिशनल नींबू ले लेंगे या कोथिंबीर ले लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि अब सेविंग तो कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन हम कहीं इन्वेस्ट कहाँ करना और कैसे करना। तो कैन यू जस्ट गिव अस अ फ्यू टिप्स अबाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स? यस, श्योर। यस, ये बहुत अच्छी बात कही कि सेविंग्स तो बहुत, मतलब हम लोग लेडीज आराम से कर लेती हैं। अब जरूरत है कि उसको एक्टिवली एज एन इन्वेस्ट करने की। बस सेविंग करके रखो, सेविंग और इन्वेस्टिंग 2 अलग चीजें होती है, तो इसमें ये समझते हैं हम। ये एक चार्ट मुझे बहुत रेलेवेंट लगा और मैं ये बिल्कुल शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ यहाँ पे, कि जो इक्वेशन हम पहले रखते हैं कि जो इनकम आई है घर में, जो हमारे हम कमा रहे हैं, उसमें से खर्च कर लो, जो बचा है वो सेविंग है। तो अब उस चीज को हमको ठीक करना है। मेरे हिसाब से वो इक्वेशन गलत है। अब हम उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? जो इनकम आई है, कल्याणी, शायद आपका स्क्रीन चला गया है। कल्याणी, yeah, she's back. Yeah. I would again request audience to note down all these points. ये बहुत अच्छी टिप्स है जो कल्याणी ने प्रेजेंटेशन के द्वारा बताई है। You can note down simultaneously जब भी प्रेजेंटेशन चालू है। काफी ऐसी नई टिप्स आएंगी, so I request everyone to note down. Yeah, कल्याणी, प्लीज अनम्यूट कर लें। yes, It's wonderful formula. yeah. Is it audible? Yeah, it is audible. तो ये जो है फॉर्मूला, ये सही करने की बहुत जरूरी है। जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि जो बच गया वो सेव हो गया, हमारी सेविंग है, अब ये खर्चे खत्म हो गए।
पर अगर इसका थोड़ा सा हम बस एक ही आपको ट्वीक करना है, पहले इनकम माइनस जो बचाना है आपको बिल्कुल बचा लीजिए आप यहाँ पे, और बचे में से एक्सपेंस करिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई बहुत एकदम कंजूसी से रहना है या कुछ स्पेंड नहीं करना है, वो मतलब नहीं है। यहाँ पे आएगा कि आप बजट बनाइए। आप देखिए कि आपके घर में क्या रेगुलर रूटीन एक्सपेंसेस है, आइडेंटिफाई करिए वो टॉप 4 या 5 एक्सपेंसेस जो सबसे ज्यादा आप सबसे बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, टॉप मे बी 5 एक्सपेंसेस, फिर 5 से आप वहीं पे फोकस करिए। ये टॉप 5 चीजें हैं, जैसे मे बी एजुकेशन, ट्रैवलिंग, खाना पीना या बाहर आउटिंग है, तो ये टॉप एक्सपेंसेस या कुछ शॉपिंग है, उसको आइडेंटिफाई करिए। वहां पे आपको कहीं ना कहीं स्कोप जरूर मिलेगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बचत करके मैं और सेव कर सकती हूँ। तो ये जो हम लोग फाइनेंशियल प्लान जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि बनाना है, तो बजटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। आप जितना वहां पे कॉन्शियसली सेव कर पाएंगे और इसको अगर इम्पोर्टेंस देंगे, तो ये आगे का जो आपका फाइनेंशियल प्लान है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, जो आपने गोल सेट किए हैं जिसकी तरफ आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस की तरफ ध्यान रखना है, इसको मंथली आप ट्रैक करिए, कहाँ कम ज्यादा हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि कंजूसी से रहना है, पर थोड़ा आप आपका पर्सनल अटेंशन यहाँ पे देंगे तो आई एम श्योर आपको थोड़े टाइम बाद बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा अपने सेविंग्स में। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं यहाँ एग्जांपल दूंगी, अच्छा खाना बनाया है, कुछ है घर पे, मतलब हम रोज एक भगवान का भोग उसमें से निकाल रहे हैं, तो बस उसी तरह समझना है कि सेविंग्स को बाजू में हटा दीजिए, फिर जो बचा है वो अपने कंजम्पशन के लिए रखिए, खाने के लिए वहां पे। तो अब ये क्या होगा, अब सेविंग्स जो आपने कर ली, तो बजटिंग कर लिया, उसमें से सेविंग्स भी आपने अच्छे से प्लान करके कर लिया, पर उस सेविंग्स को आपको दो ऑप्शन है। आप तो वैसे ही पड़े रहे कैश में, अगर आपने सेविंग की है तो बस कैश पड़ा है, आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आपने वो आइडल रखा है, या बैंक में भी चलो जमा किया है, पर आप ध्यान लगा के उसको इतना इंटरेस्ट लेकर आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रही है, आइडल खाली पड़ा है वो पैसा, उसको यूज नहीं कर रहे, बस बैंक में पड़ा है या घर में पड़ा है, उसको कहाँ आगे उसका क्या करना है वो आपने नहीं सोचा है, तो वो आइडल पड़ा है। और महंगाई जो सबसे पहला था कि अपना ध्येय फाइनेंशियल प्लानिंग का जो उद्देश्य है कि इन्फ्लेशन को टैकल करना है, हमको महंगाई को मात करना है, तो यहाँ पे वो इन्फ्लेशन उसको उस वैल्यू कम करता जाएगा उस पड़े हुए कैश की। तो हमको बहुत जरूरी है कि हमको ये लेफ्ट टर्न इधर रेड साइड में ना लेते हो, हमको राइट टर्न लेना है, बिल्कुल राइट साइड में जाना है, कि उसको जमा हुए पैसे को सिस्टमैटिकली अच्छे से प्रॉपर अपने गोल जो हमने फाइनेंशियल प्लान बनाया उसमें जो सूट होता है उस हिसाब से हम उसको इन्वेस्ट करें। और यहाँ एक बहुत बड़ा ये टूल है, मतलब ये तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो कहते हैं वो बहुत सही बात इसको कहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज जो मिलता है, वो जो है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से काम करता है। जो हम मेहनत करके इतना कमा रहे हैं, तो हमारा कमाया हुआ पैसा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट भी मेहनत करके कुछ ना कुछ आपको रिटर्न साल भर साल हर साल आपको देती जा रही है, उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। ये डिटेल में हम अगले समझेंगे स्लाइड में, पर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको यहाँ फायदा मिलेगा, और अननोइंगली छोटा छोटा करके आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट यहाँ कर पाओगे। पर अगेन ये बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए, इसको हैपेजार्ड वे में इधर उधर, इधर कुछ कर लिया उधर कर लिया, इस महीने किया अगले महीने नहीं किया, तो वो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी। मैं बार बार वही इंसिस्ट कर रही हूँ कि एक प्लान करना, एक लिख लीजिए, जो भी चीज आप सामने लिखोगे बिल्कुल उसको भूलोगे नहीं, जो बचपन में हमको कहते थे कि लिख लो, एक बार लिख लोगे तो भूलोगे नहीं, तो वो यहाँ पे लागू होता है। तब ये इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग जो मैं बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब क्या है। अब एज्यूम कर लीजिए कि 100 रुपए रखे हैं 20 साल के लिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा चार्ट लंबा बताया ताकि बिल्कुल आई ओपनर है वो हमारे लिए यहाँ पे, कि उसको रखा है पर खाली ही रखा है, हमने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया उसको, और मैंने यहाँ पे बस एज्यूम किया है कि 5%। पर अगर ऐसा देखो तो 5% से कोई कोई चीजों में जो महंगाई बढ़ रही है 5% से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे आप देखोगे पिछले 2 साल पहले के मेडिकल बिल्स और आज के मेडिकल बिल्स में इससे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, मतलब 5% तो बहुत मैंने कम यहाँ पे एजम्पशन लिया है। बच्चों के एजुकेशन में देख लेंगे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, पर ऑन एन एवरेज अगर हम हर चीजों का यहाँ पे एक एजम्पशन पकड़े 5% का, तो 100 रुपए की वैल्यू 20 साल में 38 रुपीज तक आ जाती है, कि उसकी वैल्यू पड़े पड़े कम हो गई, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, वो वैसे ही पड़ा है। जो आज 100 रुपए की चीज मतलब हम खरीद पा रहे थे, वो तो फिर बाद में 38 रुपीज की ही चीज खरीद पाएंगे 20 सालों बाद। अगर इसको इन्वेस्ट करेंगे, एग्जाम्पल लिया है कि 10,000 रुपए में महीने के
ये एग्जाम्पल है, ये कोई भी अमाउंट हो सकती है, 1,000 रह सकता है, 2,000, 5,000, 10,00,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, कितनी भी अमाउंट रह सकती है। अगर मैं ये सिस्टमैटिकली हर महीने इसको इन्वेस्ट कर रही हूँ प्रॉपरली, अपने गोल के हिसाब से मैंने ढंग से लॉन्ग टर्म पहले से ही अच्छे से प्लान करके इन्वेस्ट किया है, और उस पर मैं अंदाजा 12% अगर मैं कमा रही हूँ उस पर, 5% तो उसमें से इन्फ्लेशन ही चला जाएगा, पर फिर इसलिए मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा हायर टारगेट यहाँ पे पकड़ा है। तो ये ऐसा दिखेगा आपको पहले 10 साल, ये ग्रीन जो बार्स हैं यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आपकी, और ये जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं जो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतने साल बाद कितनी हो जाएगी, कंपाउंडेड वैल्यू, जो हर साल 12 पे 12, 12% पे 12% कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम बच्चों को स्कूल में सिखा रहे हैं, या जब हम सीख रहे थे हमको लग रहा था ये किस काम का है, पर ये बहुत काम का है। सो आई विल रिक्वेस्ट, अगर कोई यंग मदर्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये मैथ्स कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं आपको नए लग रहे हो तो प्लीज ये बहुत समझना जरूरी है यहाँ पे। और इसका ये मैग्नीफाइंग देखिए कैसा होता है कि पहले 10 साल में आपने लाख इन्वेस्ट किया है तो ये 23 लाख हो जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू 12% रिटर्न्स के हिसाब से, कंपाउंडेड रिटर्न्स। 15 साल में 18 का, 20 साल में 24 का 99 हो रहा है, मतलब और यहाँ 30 का 189, और फाइनली 30 इयर्स में 36 लाख का 3 करोड़ 52 लाख। तो ये जो डिफरेंस है ग्रीन और ऑरेंज बार का, देखो बढ़ता जाइए, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये इस चीज को, रिटर्न्स को आपको मैग्नीफाई करती जा रही है। जैसे जैसे जितना लंबा आप प्लान करेंगे उतने ही टाइम्स आपके रिटर्न्स आपके बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये आप सोच समझ के नहीं कर रहे हो, पर ये फीचर ही ऐसा है कि प्लान करके ढंग से इन्वेस्ट करने का वो एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। इसलिए हमको प्लान करके इन्वेस्ट करना, रेगुलरली इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सेव करके बैंक अकाउंट में पैसे रखना आपका ये इन्फ्लेशन उसका वैल्यू कम करते जाएगा। तो अब ये कुछ कुछ एवेन्यूज यहाँ पे आते हैं कि अब ठीक है आपने बता दिया इन्वेस्ट करना है, पर ये हम करें कहाँ इन्वेस्ट, इसको क्या एवेन्यूज है हमारे पास कि ठीक है हमने सोचा है कि हम एक्स अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो है कि आपने कैश ली, आई है आपके बैंक अकाउंट में पड़ी है, या घर पे पड़ी है, या डिजिटल वॉलेट से जहां भी आपने कैश रखी है। इसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी, पर देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा हम जमा रखते हैं जो हम इसके आगे नहीं बढ़ पाते। तो और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको फिक्स्ड इनकम देते हैं, उनपे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और वो आपको फिक्स्ड मैच्योरिटी फिक्स्ड होती है, जैसे एफडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से पोस्ट की जो अलग अलग स्कीम्स होती हैं जो रिटायरमेंट की तरफ हमको सेव करने के लिए हेल्प करती है। ये पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, ये डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जो हम खरीदते हैं अलग कंपनीज के, इन सबका क्या कॉमन फीचर है कि कुछ इंटरेस्ट रेट हमको यहाँ मिल रहा है, कुछ सालों तक हमको वहां रखना है, और हमको वो पता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त ही हमको पता है कि वहां पे हमको कितना मिलने वाला है। तो ये इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके डिटेल फीचर्स में हम अभी नहीं जाएंगे, हम इसका बहुत इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बाद में लेते हैं। और इसके आगे और एक कैटेगरी आती है इक्विटी की। अब ये क्या होते हैं, जो बहुत कंपनीज के, अलग अलग कंपनीज के हमारे शेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो हम इजीली खरीद और बेच सकते हैं। पर इस इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बहुत जोर देके यहाँ कहना चाहूंगी कि बहुत रिसर्च करने की जरूरत है। आप कौन सी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, उस कंपनी का क्या फंक्शन है, वो क्या करती है, उसका जो भी फाइनेंशियल्स है, कितना प्रॉफिट मेकिंग है, नहीं है, लॉसेस है, कौन उनके प्रमोटर्स है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, अच्छी है, या बस अपने पैसे वहां डूब जाएंगे। तो ये बहुत बैकएंड में रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना रिसर्च किए इस प्रोडक्ट को से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना यही है कि जो चीज हमें समझ में आती है बिल्कुल समझ के उस प्रोडक्ट्स में हम ध्यान से करें तो वो बेहतर रहता है। नहीं तो जो चीज नहीं समझ में आ रही है और जिसमें इतनी रिसर्च की जरूरत है तो वो चीज को हमें सोच समझ के अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। और एक है अपने लेडीज का फेवरेट गोल्ड। अब जो हम फिजिकल गोल्ड तो खरीद ही लेते हैं कि पहले से बहुत सदियों से चलता आया है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सोना ले लो जितना भी पैसा है।
पर अब इस सोने को लेने के भी डिजिटल तरीके आ गए हैं। जैसे अभी सुना होगा आपने, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है कि आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो, जितने आप पैसे दे रहे हो उतना ग्राम का सोना आपको डिजिटल, आपको आपके वो बॉन्ड्स मिलते हैं, उस बॉन्ड्स के रूप में आपको मिल जाते हैं। तो ये एक तरीका है, इस पे वो इंटरेस्ट 2.5% आपको इंटरेस्ट देते हैं एनुअली, और 8 साल आप मैच्योरिटी तक ये बॉन्ड्स रखोगे तो ये जो भी आपकी यहाँ पे गेन्स होगा वो भी टैक्स फ्री रहता है। तो ऐसी बहुत सारी नई नई चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं। हमको ये एक्टिवली थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे, थोड़े अपने घर में फैमिली में जानकार लोगों से डिस्कशन करेंगे तो ये बिल्कुल आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और हमको ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए बिल्कुल प्रॉम्प्ट रहना चाहिए, तभी हम अच्छा अपना फाइनेंशियल प्लान और पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और एक है रियल एस्टेट, इसमें आप रहने के लिए घर लो या जमीन लो या कोई रेंट पे एक्स्ट्रा है तो रेंट भी करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेते हैं। पर यहाँ में एक फीचर है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा पैसों की एक साथ यहाँ पे जरूरत पड़ती है, बिग अमाउंट इज रिक्वायर्ड, और ये थोड़े जब चाहो तब जितना चाहो उतना नहीं बेच सकते, इसमें इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस रियल एस्टेट में डील करना। अब कुछ कुछ बातें हैं, अब ये इतने सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अब कोई लोगों के लिए सारा ये नया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो एक अप्रोच क्या है, जब आप डिसाइड करो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है या अभी मुझे सिस्टमैटिकली अपना सारा सही करना है, मेरे जहां भी जो भी पैसे हैं उनको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। इन्वेस्ट ओनली इफ द इन्वेस्टमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर योर पोर्टफोलियो। आपका एक जो भी पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, जो सारा आपका अलग अलग जगह आपने इन्वेस्ट करके रखा है, सबको अगर एक कंबाइंड एक व्यू में देखेंगे, एक बास्केट में आप सारे, आपके मार्केट गए हो, आप अलग अलग चीजें खरीदे हो, एक बास्केट में वो डालिए, पूरी बास्केट आपका पोर्टफोलियो है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपको, अगर वो इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में, आपके फाइनेंशियल गोल जो आपने स्टार्टिंग में आपने लिखे थे, उस गोल के लिए अगर वो फिट है, वो अप्रोप्रिएट है, तो उस प्रोडक्ट को आप अपने पोर्टफोलियो में लीजिए प्लीज। मतलब कहीं से सुना कहा इसलिए ले लिया, वैसा हमें नहीं करना है। अब जब हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हर चीज सोच समझ के जान के बिल्कुल करनी है, और वही प्रोडक्ट लीजिए जो ऑलरेडी आपके फाइनेंशियल गोल आपने लिखे हैं उसको सूट होता है, उसका टाइम होराइजन कितना है, मैं इतने साल रुक सकती हूँ क्या, या मुझे तुरंत 2 महीने में 6 महीने में जरूरत है, वो सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये नहीं देखना कि मेरी फ्रेंड या वो क्या कर रहे हैं तो मैं रेप्लिकेट सेम की सेम कर लूं, उसने बोला खरीद ले तो मैंने भी खरीद लिया, बिल्कुल नहीं। लिटरेसी तो वापस वही सोचिए कि हमने लिटरेसी के लिए ध्येय पकड़ा है, हम जान के समझ के ही हम इन्वेस्ट करेंगे, भले ही नहीं समझ में आए, जो चीज समझ में आ रही है पूछ के एक्सपर्ट से एडवाइस लेके फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे, और जो चीज हमें सुटेबल नहीं है वो हम हमारे बास्केट में हम नहीं खरीदेंगे। इम्पल्स बाइंग जो मार्केट में जाके हम बोलते हैं कि बेफुजूल का खर्चा नहीं करना है, दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट हियर। डोंट गेट गाइडेड सोनली बाय द पास्ट परफॉर्मेंस। अब बहुत लोगों की आदत है, सीधा इंटरनेट पे गूगल पे बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बस खोला सर्च किया, जो हाईएस्ट दिख रहा है रिटर्न्स इसमें 20% दिख रहे हैं, 25%, और सीधा जाके खरीद लिया। ये बहुत गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करने का। हर इन्वेस्टमेंट जो अपन हैंड पिक्ड बोलते हैं, जो एकदम अपने सोच समझ के, जो हम अपने लिए खुद के लिए घर में जो चीज हमारी सूटेबल है, जो ये लिविंग रूम में यही पेंटिंग अच्छी दिखेगी या यही मास्टरपीस अच्छा दिखेगा या किचन में हमें यही अप्लायंसेस चाहिए, जितना सोच के हम वहां बहुत अच्छा फ्यूचर बहुत जरूरी है। जो भी हाई इंटरेस्ट लोन्स रहते हैं इसको रिव्यू कर सकते हैं कि क्या इसकी जरूरत है, या ये पे ऑफ करके हम थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, यहाँ पे इसकी EMI जरूरी है। जैसे आजकल हर चीज के लिए लोन पर ले रहे हैं, अप्लायंसेस भी लोन पे ले रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड बहुत यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अगर जब रीपे करते हैं या कुछ डिले हो गया रीपे करने में तो क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें सोच समझ के यहाँ पे बिल्कुल यंगस्टर्स के लिए जो सुन रहे हैं मैं उनको कहूंगी, क्रेडिट कार्ड इज जस्ट अ टूल, इफ यू यूज इट वाइजली वो बहुत बेनिफिशियल है, पर जस्ट हमको फ्रीली वो अवेलेबल हो गया है और हमको खर्च करने की छूट मिल गई है, वो अप्रोच नहीं होना चाहिए। उस पर अगर डिफॉल्ट हो गया, यस, थोड़ा सा पीछे का शायद मिस हो गया, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा था, कैन यू जस्ट रिपीट?
पास्ट परफॉर्मेंस है। Yes. सो पास्ट परफॉर्मेंस पे सोली नहीं जाना है, हमको ओवरऑल क्या फिट होता है हमारे पोर्टफोलियो, हमारे लिए क्या सही है। अगर चीज है, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको शुगर नहीं सूट होती है, तो वो ध्यान में रखना है। जस्ट बिकॉज दूसरे लोग मिठाई खा रहे हैं तो मैं भी खा लूं, पर मेरी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल हर चीज कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो के सूट होनी चाहिए। और ये जो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रही थी, ये जो हाई इंटरेस्ट वाली जो चीजें हैं, इनको आपको सोच समझ के यहाँ पे लेना चाहिए। और मैं स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बता रही थी कि जस्ट बिकॉज सम क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल है या फ्रीली स्पेंड करना है, बट उसके पीछे क्या कॉस्ट अटैच्ड है, स्मार्टली कैसे यूज कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दोगे तो बहुत, मतलब ये जो लाइफ के गोल्स आपने पहले डिफाइन किए थे उसका रास्ता क्लियर होता हुआ बिल्कुल दिखेगा। और एक केवाईसी कॉन्सेप्ट होता है, नो योर कस्टमर। कोई प्रोडक्ट भी फाइनेंशियल सिस्टम में आप खरीदते हैं होना, यहाँ के मतलब ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ सारा वेरीफाई होता है। इसमें ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स आपके देने होते हैं, तो प्लीज इसको अपडेटेड रखिए, क्योंकि कभी बैंक में आपने गलत नंबर दिया है पुराना और उसके बाद फोन नंबर चेंज हो गया है, तो अगर कोई फ्रॉड भी हुआ तो आपके नंबर तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आजकल फिजिकल स्टेटमेंट्स वगैरह आने बहुत कम हो गए, निकले एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर आते हैं, सारा ईमेल पर या फोन पे कम्युनिकेशन होने लग गया है। तो ये अपडेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। अब इसमें हम एक एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। इतने सारे प्रोडक्ट्स देख लिया, उसका अप्रोच देख लिया, अब भाई अब बनाना क्या है, मतलब क्या है, मार्केट में बास्केट लेके निकल गए, डालना क्या है बास्केट में, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। एक तो पहले आप डिसाइड करिए कि मतलब आपने फाइनेंशियल गोल्स पहले बनाए हैं, आपके डिफाइन किए हैं, उस चीज के लिए क्या सूटेबल है। आपको शॉर्ट टर्म है, आपको कुछ महीनों में पैसा लगने वाला है, कुछ दिनों में लगने वाला है, तो उसके लिए क्या आप मतलब एफडी जैसे प्रोडक्ट चूज कर सकते हो कि बस थोड़े दिन की बात है, जल्दी से मुझे बैंक से वापस मैं विड्रॉल कर लूंगा, मिल जाएंगे, या और कुछ दूसरे रहते हैं बैंक या सेविंग्स में रखिए। कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, सोच समझ के करने होते हैं। उसको हर इन्वेस्टमेंट को आप एक गोल अटैच करिए, देखिए कितना सिस्टमैटिक होता जाएगा सारा। अगर कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए किया है और उस इन्वेस्टमेंट को उसका नाम दे दिया है आपने ये कि ये मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए ही है, ट्रस्ट में आप उसको कभी तोड़ना नहीं चाहोगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहोगे, आप बिल्कुल उस पर सिंसियरली आप उसको आपके प्लान पर आप बने रहोगे। कोई चीज आपने रिटायरमेंट के लिए प्लान की है, तो ये सारे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग मार्केट में, तो हर एक गोल के साथ आप उसको अटैच कर सकते हो। गोल्ड है, रियल एस्टेट है, हर चीज जो भी खरीद रहे हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए, मतलब ये सारे अवेलेबल है। तो ये सारे हम, ये जो है एफडीज है, शेयर्स है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है, लिक्विड फंड्स है, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सारे अलग अलग टाइप के एसेट्स हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल है मार्केट में, ये इनको एसेट्स कहते हैं, और इसका प्रॉपरली एक प्रॉपर मिक्स आपको आपके पोर्टफोलियो में लेना है। अब ये मिक्स कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले डिसाइड होगा आपका गोल क्या है, कितने साल के लिए आपको पैसा रखना है, आपके पास टाइम कितना है वो गोल अचीव करने के लिए। अगर कोई यंग है, डिसाइड कर रहा है, अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, तो उसके पास है 20-25 साल आराम से है, तो वो उस हिसाब से प्लान करेगा, उस हिसाब से यहाँ से प्रोडक्ट्स यूज करेगा। कोई ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट ईयर मुझे कोई वेकेशन करने कहीं जाना है, जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा, सब लॉकडाउन खुलेगा, तब कोई अब्रॉड ट्रिप करनी है, उसके लिए प्लान करना है, तो उसके लिए यहाँ से दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। आपका रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी सेम एज योर वेकेशन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट। ये दो अलग चीजें रहेंगी, उनके फीचर्स अलग होते हैं, उनका टाइम होराइजन अलग होता है, रिटर्न्स अलग होते हैं। तो गोल बनाइए, उसको मैप करिए आपका इन्वेस्टमेंट, तो वो बहुत ईजी होता जाएगा। और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? रिस्क दो टाइप की होती है। एक तो रिस्क होती है कि किसी इंसान की इनहेरेंट अपनी क्वालिटीज रहती है कि मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे मेरा रिटर्न्स जो आते हैं रोज ऊपर नीचे होते हैं, अगर वो मुझे पसंद नहीं है, अगर वो मुझे बेचैन कर रहे हैं, तो मे बी दैट प्रोडक्ट इज नॉट फॉर मी। द पर्पज इज हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो पहली स्लाइड में देखा था, हमारा पीस ऑफ माइंड हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मतलब अगर उस पीस ऑफ माइंड में वो प्रोडक्ट सूट हो रहा है, तो वो एक आपका पर्सनालिटी ट्रेट है जिसको आप खुद ही समझ सकते हैं। कोई आपको कोई इतना भी एडवाइजर रखो या वो मतलब उतना सही नहीं बता पाएगा जितना आप खुद का रिस्क कर पाए, और आप सामने से बोल सकते हो भाई कि हाँ भाई नहीं, ये मुझे नहीं सूट होता है, या ये मेरे लिए नहीं है, या ये
आई फाइंड दिस एडवेंचरस एंड आई वांट टू गो एड एंड डू इट, और मेरे पास उतना टाइम है। तो टाइम ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल आपका रिस्क फैक्टर डिसाइड करने में। जितना लंबा गोल रहेगा, आपको लगेगा कि चलो ये अगले साल तो नहीं लग रहा है पैसा, बहुत टाइम है अभी, तो थोड़ा सा मैं वोलेटिलिटी सहन कर सकता हूँ। वोलेटिलिटी क्या होती है? जो आपकी मार्केट वैल्यू, जो भी है, जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया है उसकी एक मार्केट वैल्यू होगी, या उस पर इंटरेस्ट होगा, या उस पर कुछ आपको कमाई जो मिल रही है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है। तो फ्लक्चुएशन जितना ज्यादा होगा उसको उतना आपका रिस्की लगेगा। पर अगर आपका टाइम लंबा है तो मे बी आपको लगेगा कि लंबे दूर तक मैं यहाँ बना रहूंगा, पर थोड़ा ये वोलेटिलिटी ऊपर नीचे भी चलेगा, पर मुझे थोड़े ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं। तो टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग योर रिस्क। तो एक कि आप खुद की पर्सनालिटी रिस्क लेने की, और आपका टाइम होराइजन, अगर इन सब चीजों को आप कंबाइन करके बनाएंगे तो एक आपका प्रॉपर एक आप पोर्टफोलियो डेवलप कर पाएंगे यहाँ पे। तो हर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा इतना सोच समझ के आप बिल्कुल ध्यान देके करिए। अब इतना सब मेहनत करने की क्या है, बेनिफिट्स क्या है? भाई ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, रिस्क भी देख लिया, सब, उसमें बेनिफिट्स क्या है? जितना आप इसको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करोगे, उसको टाइम बाउंड करोगे, उसका फीचर्स को देखोगे और फिर लोगे, तो आप अपने आप अपनी रिस्क कम करते जाओगे। नहीं तो ऐसा होगा कि एक प्रोडक्ट में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो और वहीं की रिस्क, सारी रिस्क आपकी वहीं एक्यूमुलेट होते जा रही है। पर अगर एसेट एलोकेशन, अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स ये सारे आप चूज करके हैंड पिक करके आपके पोर्टफोलियो में डालोगे, तो आप रिस्क आपके मैनेज कर रहे हो, वहां पे उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, और रिटर्न्स इंप्रूव कर पाओगे। जैसे आपने रिस्क रिड्यूस किया और कुछ लंबे टाइम के लिए रखा है, कुछ अगले साल लगने वाला है, कुछ 10 साल बाद लगने वाला है, तो ये सब मैनेज करके आप रिटर्न्स इंप्रूव कर पाओगे, आप अपने गोल्स जो लिखे हैं वो अचीव कर पाओगे, और आप सारा आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगा। ये यहाँ का टेक अवे है। अब ये सब करते हैं हम, तो बहुत सारी, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत बोरिंग प्रोसेस है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत बोरिंग है। मतलब इतना सब करना है, पहले ही घर के कामों से ही हम ऊपर नहीं उठ रहे हैं, बाकी हमारा प्रोफेशन भी है, बच्चों पे भी ध्यान देना है, अब इतना सब और कौन करेगा? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे जहाँ पे आपको कुछ टेम्पटेशंस होंगे, जो कोई आपको डेली आप बिल्कुल ट्रैक कर रहे हो, सेंसेक्स निफ्टी, इधर उधर कहाँ मार्केट जा रहा है, कहाँ ये कर रहा है, आप बिल्कुल वहां डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि चल भाई इतना लंबा नहीं करना है, क्विकली यहाँ पे देख के कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, ये मुझे टिप मिल रही है। तो वो एक डिस्ट्रैक्शन बहुत यहाँ पे रहेगा। तो ये बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर है, बिल्कुल आप इन चीजों से बच के रहोगे और सोच समझ के अपना प्लान करोगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका प्लान फॉलो हो पाएगा। और जो डेली न्यूज सुबह दोपहर शाम जो चल रहे हैं, जो अपने को बीपी ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज जस्ट वी हैव इन्वेस्टेड, और हम ट्रैक कर रहे हैं रोज, हमने सोचा था 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 साल के लिए करना है, पर एवरीडे वी आर ट्रैकिंग। अभी कोई मुझे बोलिए कि मतलब अगर बहुत लंबे टाइम के लिए हमने कुछ सोच रखा है कि उसका डेली इन्फॉर्मेशन लेके कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम एज लॉन्ग एज हम सही प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड है और हमने उसका टाइम होराइजन देखा है, हम उसको बराबर रिव्यू कर रहे हैं 1-2 सालों में, जितने साल में, डेली नॉइज और हाइप शुड नॉट बॉदर यू रियली। इससे पीस ऑफ माइंड हमारा चला जाता है। और जो बस फ्रेंड्स ने कहा, फैमिली ने कहा, बस किसी ने बोल दिया ये ले लो, वो अप्रोच सबसे गलत है। अगर ये अप्रोच हम नहीं रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हमारे ट्रैक है, जस्ट देखा कि मार्केट गिर रहा है, हमने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो ये फिर इट विल कम इन आवर वे ऑफ अचीविंग आवर फाइनेंशियल गोल। तो हम रेगुलरली जो हमने सोचा है, हम थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो ये गोल पे हमको बने रहना है, ये नहीं देंगे तो ये हम बने रहेंगे। और जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि एसेट एलोकेशन बिल्कुल रहना है, और एसेट एलोकेशन को बिल्कुल आपकी बैलेंस डाइट के जैसे समझ लीजिए। जो डाइट पे हम आजकल इतना ध्यान दे रहे हैं, पहले से देते आए कि कौन सी चीज किस मात्रा में हमारे लिए खानी जरूरी है और हेल्दी है। तो कभी कभार जंक खा लिया वो अलग बात है, पर रोज हम जंक फूड नहीं खा सकते हम डे टू डे लाइफ में। बस उसी नजर से आप देखिए, आपको बहुत इजी लगने लगेगा ये कि क्या कितने मात्रा में आपके लिए कितना सही है, वो देखना बहुत जरूरी है। यस वीना, आई होप मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। और ना एब्सोल्यूट बहुत अच्छे से समझाया कल्याणी। राइट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग से लेके इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन ही देखे तो जैसे हम 1 लीटर दूध लेते थे, आई थिंक एक 7-8 साल पहले 20-25 रुपए का था, जो कि अभी 55 रुपए का हो गया।
तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इन्फ्लेशन कैसे आपकी मनी वैल्यू कम करता है, और आपने बहुत अच्छे से बताया कि यू कैन इन्वेस्ट थ्रू डिफरेंट एसेट एलोकेशन करके आप आपका रिस्क मैनेज कर सकते हो और रिटर्न आप फिर बढ़ा लाइन गए। सकते हो। एंड अगेन बोरिंग। ये जो गांधी जी के 3 बंदर, ये तो बहुत अच्छे से एग्जांपल दिए कि यू शुड बी कंसिस्टेंट विथ एंड यू शुड स्टिक टू योर फाइनेंशियल गोल्स एंड योर इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, दैट्स द की। बट अभी ये सब डे टू डे में क्या होता है कल्याणी, हम लेडीज लोगों को ना ये सब फैंसी थोड़ा सा लगता है कि यार ये बहुत सारा टफ लग रहा है, कंपाउंडिंग क्या होता है, ये क्या होता है, और हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कितना पोर्शन करना, क्या करना, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। रिटर्न्स तो बनाने हैं, हम बजटिंग कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो फिर हम कोई सिंपल वे है कि जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? इज देयर एनी Yes. सिंपल वे वी कैन टेक Yes. एडवांटेज अभी ऑफ आगे मैं वही या यस यस ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट में, उसी की तरफ मैं अभी आ रही हूँ। ये बस आपके लिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ थोड़े 1-2 एग्जांपल्स लेके आपको बताना चाहूंगी कि हाउ यू कैन रियली सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस। ये टेक्निकल चीज जैसे पहले भी मैंने बताई कि इस पे आप कुछ टेक्निकल टर्म्स नहीं भी समझ में आए, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक आता है म्यूचुअल फंड करके एक प्रोडक्ट है, जो ये क्या प्रोडक्ट है और ये आपकी सारी दुविधाएं, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, कितना रिसर्च कौन करेगा, शेयर्स खरीदने हैं, और कुछ मतलब एसेट एलोकेशन करना है, ये सब कौन करेगा, अब मुझे मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, ये कैसे होगा। तो इसके लिए एक सिंपल प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड। ये कैसे काम करता है मैं आपको यहाँ पे क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ। हम जैसे बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करना मैंने बताया जो बहुत जरूरी है। अगर सपोज 10 साल का मेरा भी ऑब्जेक्टिव है, वीना का भी ऑब्जेक्टिव है, निकिता का भी ऑब्जेक्टिव है, और कुछ ऐसे हम सारे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव वाले जो लोग हैं, एक स्कीम का भी है, जो म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अलग अलग इनको स्कीम्स कहते हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्कीम्स रहती हैं। तो हर एक स्कीम का एक अलग ऑब्जेक्टिव रहता है। तो मेरे ऑब्जेक्टिव को क्या मैच होता है, मैं वैसी स्कीम सिलेक्ट करूँ। वो या तो आगे जाके शेयर्स में इन्वेस्ट करी हो, या फिक्स्ड इनकम के जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में, उसमें इन्वेस्ट कर रही हो, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हो, या इनके कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर रही हो, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे सारी वैरायटी आपको अवेलेबल है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्कीम के ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से मैच होता है, वो स्कीम सिलेक्ट कर ली। हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स का सारा पैसा इकट्ठा होकर एक फंड मैनेजर उस पैसों को मैनेज करता है, उस स्कीम में सारे के पैसे आ गए, फिर एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो एक्सपर्ट है वो मैनेज करता है पैसों को, और हमको उसकी स्किल्स पर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। और हमको कोई भी स्कीम या म्यूचुअल फंड जो हम बोलते हैं सिलेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि हम थोड़ा जाने कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, या किसी से पूछे, उस पर थोड़ा रिसर्च करे कि ये सही तो है ना, ये कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड है, वो कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कितना उन्होंने पास्ट में कैसे किया है, या उनकी मैनेजमेंट कौन है, प्रॉपर ऑथेंटिक लोग तो है ना। तो ये फंड मैनेजर्स अगर अच्छे से काम कर रहे हैं आपकी स्कीम पर, तो ये बिल्कुल वैसी स्कीम्स आप सिलेक्ट करिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। और ये फंड मैनेजर्स अपने एक्सपर्टीज डे इन एंड डे आउट, उनको मार्केट में पता है कि क्या हो रहा है, कौन सी कंपनीज क्या कर रही हैं, वो डायरेक्टली कंपनीज के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनके डे टू डे डेवलपमेंट्स उनको पता होते हैं। तो वो एक्सपर्टली आपके फंड्स हैंडल करते हैं, और वो मार्केट में जाके जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उस स्कीम का, जो सिक्योरिटीज उनके एक फ्रेमवर्क होता है, उनको जो उसका अप्रूवल मिला है, उसी अप्रूवल के अंदर वो काम करते हैं। वहां जाके वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से रिटर्न्स जनरेट करते हैं, और वो वापस आपको पास बैक करते हैं। ये रिटर्न्स होंगे या तो डिविडेंड के फॉर्म में हो सकते हैं, या आपको रेगुलर इनकम, रेगुलर डिविडेंड नहीं चाहिए, आपको बस कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, तो आप वहीं इन्वेस्टेड रहिए, आपकी जो वैल्यू है वो वहां ग्रो होती जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 रुपए में खरीदा, धीरे धीरे 10, 11, 12, 13, 15 रुपए, आप जैसे जैसे टाइम देंगे वो धीरे धीरे वहां बढ़ता रहेगा, और जब रिक्वायरमेंट हो वहां से आप इजिली निकाल सकते हैं। तो ये हम म्यूचुअल फंड का ये कॉन्सेप्ट है। इसको मैं थोड़े बेनिफिट्स यहाँ क्विकली बता देती हूँ। यहाँ प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स होते हैं, जो हमको खुद को प्राइमरी रिसर्च यहाँ करने की जरूरत नहीं है, वो लोग रिसर्च करते हैं और अच्छे से सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, कहाँ इन्वेस्ट करना है।
इसमें एक ही बार आपको आपका नो योर कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है केवाईसी पेपर वर्क एक ही बार करना है, आपको अलग अलग जगह हर बार हर इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग नहीं करना है, तो आपका पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है। भले ही अलग अलग कंपनी के फंड में आप इन्वेस्ट करिए, पर ये केवाईसी आपको एक ही बार करना होता है। और यहाँ पे बहुत छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 1000 रुपए से लेके आप बड़ी अमाउंट तक, जितना जिसको जैसा फाइनेंशियल गोल है या फाइनेंशियल आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत छोटी अमाउंट से लेके आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। और ये बहुत रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करती है। बहुत इनको मैंडेट्स मिले हैं, इनको बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस है कि सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, या फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम है, हर चीज उनको बतानी पड़ती है डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ बेसिस, डिक्लेरेशंस रहते हैं। तो बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम में ये सारा काम होता है यहाँ पे। और ये जो वेराइटीज सारे एसेट्स मैंने बताए थे, इतने सारे इक्विटी, डेट, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सबका इंडिविजुअली आप चूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन जैसा चाहिए आप बिल्कुल अपने हिसाब से यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। और सबसे बड़ा यहाँ ये फायदा है कि आपको बहुत वैरायटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज आप डिसाइड कर सकते हो। अब ये स्ट्रेटेजी बड़ा वर्ड लगता है सुनने में, पर इसका बेसिक मतलब क्या है? आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे इतना इन्वेस्ट आज ही है, अगले महीने नहीं रहने वाले हैं, वो भी आप कर सकते हो। एक बड़ी अमाउंट आपके पास एक साथ नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा करके हर महीने सेविंग्स करके, बजटिंग करके, सेव करके आपको इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP रूट आप ले सकते हो। आपको जैसे मैंने बताया कि बीच बीच में आपको आपका पोर्टफोलियो पे ध्यान रखना है, रिव्यू करना है, तो कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हमें एक इन्वेस्टमेंट से दूसरे इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ट्रांसफर करें, उसको रीबैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है, वो अवेलेबल है। और ये जब सारा पैसा यहाँ पे जमा हो जाता है, बाद में कभी फ्यूचर में जब हमने जिस गोल के लिए, रिटायरमेंट के लिए सपोज सोचा था, जब वहां निकालना पड़ेगा, अब हम इन्वेस्ट नहीं करना है, अब हमको विड्रॉ करना है, हमको निकालना है, तो उसके लिए भी यहाँ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अवेलेबल। जैसे आपने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया था एवरी मंथ, वैसे ही ऑपोजिट, कंप्लीटली ऑपोजिट, सिस्टमैटिकली एवरी मंथ आप विड्रॉ कर सकते हो फिक्स्ड अमाउंट ऑन एवरी मंथ ऑन द सेम डेट। तो ये सारे टूल्स है जो म्यूचुअल फंड हमको देता है। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट इन इटसेल्फ, ये सारे टूल्स है। स्कीम्स अलग अलग होंगी, पर हर स्कीम में आप ये टूल्स यूज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये और एक एग्जांपल लेंगे हम। ये एग्जांपल के थ्रू काफी क्लियर हो जाएगा कि वन टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। SIP काफी पॉपुलर है, मुझे लगता है काफी लोगों को पता होगा। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अज्यूम करिए कि 24,000 मेरे पास थे, मैंने एक ही साथ सितंबर 2019 में ये डाल दिए पैसे, इन्वेस्ट कर दिए कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में, तब उसका प्राइस था 10 रुपए। तो मुझे मिले उसके कितने यूनिट्स? 24,000 डिवाइडेड बाय 10 यूनिट, मुझे उसके 2400 यूनिट्स मिले उस, क्योंकि 10 रुपए उस दिन उस चीज का रेट था उस स्कीम का। तो अब ये मैंने रखा, ये साल भर के लिए पैसे रखा, और उसके बाद मेरे यूनिट्स 2400 थे मेरे पास। साल भर के बाद उसका प्राइस हो गया 11 रुपए। अगर मैं 2400 यूनिट्स मेरे पास है, तो मैंने 11 रुपए से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्राइस बढ़ गई है 1 रुपए से 1 साल में, तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ 26,400 हो गया है। अब बीच में ये जो NIV मूवमेंट हुई है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस ये शुरुआत में जो डाला, एंड में जब निकाला, तब का क्या है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। आई एम डन, हो गया मेरा, मतलब ये इस बीच के, इसलिए आई एम नॉट बॉदर्ड। पर अगर हम इसको सिस्टमैटिकली एवरी मंथ इसी अमाउंट को डिवाइड करके करते, अगर SIP में के थ्रू हम इन्वेस्ट करते, कोई भी एक स्कीम सेलेक्ट करते हैं, उसको वन टाइम की जगह हम सिस्टमैटिकली अगर हर महीने उसी अमाउंट 24,000 को हम 2,000 के इसमें अगर डिवाइड कर रहे हैं, एक साल भर में हमने इन्वेस्ट किया है, एवरी मंथ 2,000 एवरी मंथ वी आर इन्वेस्टिंग। तो ये क्या हो रहा है, हर महीने उस डेट पे, जो डेट पे हमारा अमाउंट बैंक से कट के यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, उस डे का डेली प्राइस डिक्लेयर होता है, उस प्राइस पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो कभी 10 रुपए पे आपने लिए, कभी 8.5 पे लिए, कभी 9.5 पे लिए, सेम अमाउंट उतनी ही इन्वेस्ट हो रही है, पर रेट अलग अलग हो रहा है। इसलिए आपको जो उसके बदले में जो आपको यूनिट्स मिल रहे हैं, तो ये अलग अलग यूनिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइस जहां पे कम थी वहां ज्यादा यूनिट्स मिले, जहां प्राइस ज्यादा थी वहां कम यूनिट्स मिले हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, यूनिट्स कम मिलते जा रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एवरेज करते जा रहा है, मतलब कभी सस्ता कभी महंगा, बिल्कुल ये अपने आप को एवरेज करते जा रहा है। और ये हमारा हेडेक नहीं है कि मैं आज करूं इन्वेस्ट कि कल करूं, कि आज मार्केट हाई है कि कल लो है, ये प्राइस सही है गलत है। इसमें हमारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पर्सनल जजमेंट हमारी इसमें से खत्म हो जाती है।
तो आप ये देखेंगे सेम 24,000 के हमने ये कम ज्यादा रेट का फायदा उठाते हुए 2692 यूनिट्स यहाँ इकट्ठे कर लिए। पहले हमने 2400 यूनिट लिए थे, अभी 2600 यूनिट्स के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए हैं, जिसका मार्केट वैल्यू सेम 11 रुपए से ही पकड़े तो 29,612 आ रहा है, जो पहले की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो ये बेनिफिट है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने का। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, छोटी बड़ी अमाउंट हर अमाउंट के लिए हम ये कर सकते हैं। तो ये इसका यहाँ पे ये होगा। और SIP और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल इसको हमको एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने गोल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यस वीना। वीना I think Veena. Sorry, some connection. Yeah. Yeah, I'm back. थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। थैंक यू। ये बहुत अच्छे से समझाया कल्याणी कि we can take advantage of all these asset classes through mutual fund investments, and again through SIPs or through lump sum. So can you also share ki what is the right age to start investments? What? Yes. How we can get benefited if we start early? Yes. तो ये इसमें ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हमने बात की, जितना ज्यादा टाइम दो उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करो वो आपके लिए पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छी चीज आप कर सकते हो। तो आप स्टार्ट अर्ली करिए और सिस्टमैटिक तरीके से करिए। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ इन योर फाइनेंशियल प्लान। अब यहाँ वीना, मैंने आपको खुश करने के लिए बिल्कुल आपको 25 इयर्स यहाँ बताया है। आप सोचिए कि आज आपको 25 एक एग्जाम्पल के इसमें समझेंगे हम तो बहुत इजी हो जाएगा ये समझने के लिए। सपोज वीना है अभी 25 इयर्स एंड हर रिटायरमेंट, शी इज प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट 60 इयर्स ऑफ एज। उसके पास 35 इयर्स है ये अचीव करने के लिए टारगेट। अभी बहुत टाइम है रिटायर होने में। वट एवर शी इज अर्निंग वो अभी मंथली 10,000 उन्होंने SIP स्टार्ट कर दी है। अज्यूमिंग अगेन 12% वहाँ रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर, कभी कम मिलेंगे कभी ज्यादा मिलेंगे, ये 12% एवरेज हमने पकड़ा है। तो 35 सालों में इस SIP में इतनी कैपेसिटी है कि ये 6.5 करोड़ आपके लिए जमा कर सके। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिसेस बियानी। बस वो 5 साल बड़ी है आपसे, 30 इयर्स ऑफ एज, तो उसको मिलते हैं 30 साल मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अज्यूमिंग सब लोगों को सेम एज पर जरूरत पड़ने वाली है पैसों की, पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट 5 साल देरी से स्टार्ट की, सेम अमाउंट कर रही है, सेम रिटर्न कमा रही है। जस्ट बिकॉज दैट 5 इयर्स का यहाँ डिले है ये इसमें यहाँ पे, तो उनकी एंड वैल्यू में देखिए कितना फर्क आ गया है, ऑलमोस्ट हाफ यहाँ पे दिख रही है। और एक निकिता फॉर एग्जाम्पल, यू डिसाइड यू वांट टू इन्वेस्ट लेटर, और 5 साल आपने डिले कर दिया। अभी से आपने अर्ली एज व्हेनेवर यू स्टार्टेड वर्किंग यू डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस SIP मे बी लेटर इन योर लाइफ, you have only 25 years left for that retirement age, 60 years, और सेम अमाउंट सेम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि 1.9 CR ही आप बना पाए हैं। बट डज दैट मीन कि अब जिनकी एज ज्यादा हो गई है, जो 40s में है, मिड 40s में है, वो करे ही ना, इट्स टू लेट? नहीं, ये अजम्पशन करना बहुत गलत है। जब से भी आपको ये बात समझ में आ गई हो, जो यंगस्टर्स हैं प्लीज इसको ध्यान में रखिए, आपको जल्दी स्टार्ट करना है। और जो जिन्होंने नहीं भी किया होगा, जो अब इसके बाद सोच रहे हैं, बट देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग। बिल्कुल राइट टाइम इज नाउ। whenever you are aware of the thing and you appreciate the benefits of that, please start doing it. खुद के लिए तो आप कुछ ना कुछ यहाँ जमा कर ही पाओगे, खुद के लिए नहीं तो और आगे के लिए आप कुछ वेल्थ में भी क्रिएट करके आप रख पाओगे यहाँ पे। That is the whole intention of starting early, and everyone should be motivated enough to do it whenever they now you understand the importance of it. So please start it right now. Yes, Veena. Excellent. This is Veena is there on excellent the call. information, कल्याणी। So हम डिफरेंस दे सकते हैं कि अगर आप 25 साल में शुरू करते हो तो आपका क्या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो कॉर्पस जमा होता है
वो उसकी वो अमाउंट और व्हेन यू स्टार्ट एट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ देयर इज अ बिग ह्यूज गैप. Excellent. I mean, Yes. it's really advisable for all the teenagers who are watching this program कि you should start early. भले जैसे कल्याणी ने बताया कि 2000 से भी आप शुरू कर सकते हो, 1000 से भी शुरू कर सकते हो. So start investing early. It's a wonderful message, Yes. Kalyani. Yes. So we another question, एक पर्सनल फाइनेंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाती है और जैसे रिसेंटली वी आर अंडरगोइंग थ्रू पैंडेमिक सिचुएशन, तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. तो हमें कौन से इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी चाहिए, या फिर हमें जब हम इंश्योरेंस का मार्केट में काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो हमारे लिए कौन सा सूट होगा, तो इंश्योरेंस लेते समय हम क्या सोचना चाहिए? तो कैन यू जस्ट शेयर योर थॉट ऑन दिस? या अब इंश्योरेंस एक तो जरूरत है कि हमको जितना भी हम रहते हुए जितने खर्चे हो रहे हैं उनके लिए केपेबल खर्चों को करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. और अगर कोई डिपेंडेंस है मेरे ऊपर, मेरी फैमिली अगर फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंडेंट है, अगर मैं नहीं रहूं तो ये खर्चा कौन चलाएगा, उसके लिए हमको इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी, ये सोच रखनी बहुत जरूरी है. और नो अदर बेटर टाइम्स देन दिस टू मेक इट फील, मतलब इसका इम्पोर्टेंस समझाने के लिए कि आज की तारीख में ये हम सब एग्री करेंगे कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है. अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंश्योरेंस एक थोड़ा कि हम हर कोई ने ले रखा है, सबको लगता है कि हाँ किसी ने बताया इंश्योरेंस लेना जरूरी है और है हमारे पास इंश्योरेंस. तो ये समझना बहुत जरूरी है, इज दैट इंश्योरेंस सफिशिएंट फॉर यू. ये जो मैंने यहाँ पे अभी अम्ब्रेला बताई है, दैट रियली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रेन्स आउटसाइड. मतलब आपको पूरे तरीके से उसका बेनिफिट मतलब मिलने वाला है कि, या आपने आधा अधूरा कुछ तो नॉमिनल कर दिया है और उसी पे डिपेंडेंट है. तो एट एवरी, जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस होती है, हमारी लाइफ स्टाइल बदलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, डिपेंडेंस हमारे ऐड होते हैं. यंगस्टर्स की शादी होंगे, शादी के बाद अगर और बच्चे भी हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंस बढ़ते हैं, पेरेंट्स रिटायर हो गए, तो हमको ये बराबर रिव्यू करके प्रॉपर अमाउंट का इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है. तो हम ये इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं कि क्यों जरूरी है ये. इंश्योरेंस प्रोवाइड्स यू गारंटी ऑफ कॉम्पनसेशन. अगर कोई इवेंट होता है, जैसे कि डेथ है, इलनेस है, या कोई चीज का डैमेज हुआ है, तो आपको एक छोटा प्रीमियम भरते हो आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त, और उस प्रीमियम के बदले आपको एक बड़ा कॉम्पनसेशन गारंटी हो जाता है. ये इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस लेने वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट. तो वो आपको गारंटी उस कॉम्पनसेशन की मिल जाती है. और ये अमाउंट कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए ये आप डिसाइड करोगे, आपकी इनकम लेवल्स डिसाइड करती है. तो ये बिल्कुल थिंक ऑफ द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये बिल्कुल सही कहावत है यहाँ पे, कि हमको क्या बुरा हो सकता है या क्या हो सकता है, उस हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल रह के यहाँ पे अगर सोच के हम इंश्योरेंस लेंगे, तो अगर कोई फाइनेंशियल मतलब साउंड है और उनके जाने के बाद भी फैमिली का लिविंग शुडंट गेट अफेक्टेड, वो पूरा पर्पस यहाँ पे होना चाहिए. इंश्योरेंस कैन कवर एक्सपेंसेस इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स एंड हेल्प इन पेइंग ऑफ द, बच्चों का एजुकेशन शायद बचा हो, उनका करना हो, कोई लोन्स हो, डेली लिविंग एक्सपेंसेस हो, ये यहाँ सारे इस कॉम्पनसेशन से आप इसको यहाँ पर फंड कर सकते हो. It acts like one additional member in your family. मतलब कोई वो अर्निंग मेंबर नहीं है, पर भाई कुछ छोड़ के गए हैं फैमिली के लिए, इज टेकन केयर ऑफ द फैमिली, और यहाँ पे ये लेना जरूरी है. अब यहाँ पे ये भी बात आएगी कि लेडीज के लिए इंश्योरेंस ले नहीं ले, पर ये भी उस एंगल से भी अगर हम सोचेंगे कि अगर लेडी घर मैनेज कर रही है, तो कितनी सारी जो काम है जो जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा, हम उसको तोल तो नहीं सकते, पर एक अगर सोचेंगे कि अगर वो लेडी ना हो घर में, तो कितना सारा मे बी अपना खर्चा बढ़ेगा, या और कितना एडिशनल हमको हेल्प लगेगी, या उस एंगल से भी अगर देखेंगे तो हमको लगेगा कि यहाँ इंश्योरेंस लेना वर्थ है या नहीं है. मतलब उसको गिन तो नहीं सकते हैं, पर यस, द थिंग्स दैट वी डू आवर फैमिली आर वेरी वेरी वैल्यूएबल. पर अगर इन द एब्सेंस ऑफ दैट, कि हम उसको सपोर्ट करने के लिए और भी मतलब हमको एक्सपेंसेस होंगे. और इट्स फाइनली, अगर एक इंश्योरेंस ढंग से आपने पूरा आपको एक्सपेंसेस कवर करता है, अच्छी पॉलिसी ली है, तो आपको मेंटल पीस एंड सिक्योरिटी का एक फीलिंग जो आएगा, दैट इज अनमैच्ड. अब इसमें कौन से लेने चाहिए? आज जो हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो आई विल मेजरली टॉक अबाउट दीज टू इंश्योरेंसेस हियर. एक तो लाइफ इंश्योरेंस, प्योर टर्म प्लान्स होते हैं अपनी लाइफ को कवर करने के लिए. कवर ये होता है कि हम अपनी लाइफ को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस कॉम्पनसेशन के लिए, सम एश्योर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं, हम पॉलिसी ले रहे हैं,
और एक टर्म प्लान मोस्ट सिंपल प्रोडक्ट है, ये सबसे लो प्रीमियम पे आता है और सबसे ज्यादा इंश्योरेंस यहाँ पे आपको मिलता है। तो बिल्कुल ये प्लेन वनीला ऑप्शन है, यहाँ पे ज्यादा तामझाम की बिल्कुल जरूरत नहीं, हमको एडिशनल फीचर्स और ये सब। यहाँ पे सिंपल आपकी लाइफ को कवर करिए, बड़े अमाउंट से करिए, आपकी इनकम लेवल से आप असेस करिए आपको और इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और कितने रुपए का आपको इंश्योरेंस चाहिए, यहाँ पे असेस आपको खुद को करना है। इस इंश्योरेंस का एक फीचर है कि आपको जीते जी यहाँ पे कुछ भी कैशबैक वैल्यू नहीं मिलती है, और अगर ये पॉलिसी टर्म खत्म भी हो गया और जिसने पॉलिसी ली है वो उसकी डेथ नहीं हुई, वो स्टिल इज अलाइव, तो इसका कोई रिटर्न प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत मतलब ये फीचर बहुत लोगों को ये रोकता है इस पॉलिसी को लेने के लिए, बट आई थिंक वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए टर्म प्लान का। टर्म प्लान इज बेसिकली कि आपको सबसे बड़ा अच्छा इंश्योरेंस सबसे सस्ता मिल रहा है, एंड इट प्रोटेक्ट ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स। यहाँ पे उस एंगल से इसको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हमको नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, वो वैसे नहीं होता है। अगर किसी का टर्म लोन अगर कहीं लिया है, कोई 10-15 सालों के लिए किसी ने लोन लिया है और उसको पे ऑफ करने का अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट्स या दूसरी आपकी कोई स्ट्रेटेजी या सोर्स नहीं है, तो यहाँ ये इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कुछ हो जाता है तो इस पॉलिसी से आपका वो रीपेमेंट हो सकता है और आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को कोई आंच नहीं आएगी, कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। नहीं तो ये नहीं रहेगा और वहां से आपको निकालनी पड़ जाए कोई अमाउंट, तो आपके तो आगे के सारे फाइनेंशियल गोल्स प्लानिंग सारी बिगड़ जाएगी, इसलिए ये जरूरी है। और यहाँ सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलता है, डेथ के बाद जो भी आपने बेनिफिशियरी अपॉइंट किया है जिसको ये मिलना चाहिए पैसा, उसको मिलेगा। दूसरे टाइप का इंश्योरेंस हम यहाँ बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत बहुत जरूरी है। राइजिंग मेडिकल जो एक्सपेंसेस होते जा रहे हैं, बड़े से सिटीज बोलो या छोटे सिटीज, हर जगह ही उस हिसाब से इतना इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी है। ये आपको इंडिविजुअल्स को या पूरी फैमिली का आप इंश्योरेंस ले सकते हो, सीनियर सिटीजन का अलग ले सकते हो, क्रिटिकल इलनेस के लिए बहुत वैरायटी है इसमें। प्रॉपरली हर चीज के फीचर्स समझ के, फाइन प्रिंट समझ के, देखकर पढ़कर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे फैमिली के लिए लेनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे बहुत बड़ा खर्चा अगर ये देखेंगे हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस अगर हो गया, तो फिर यहाँ पे ये हमको प्रोटेक्शन मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी से। और यहाँ पे ये फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होगा, जितने कि आपने पॉलिसी ली, जितना कॉम्पनसेशन यहाँ पे सम एश्योर्ड आपने एग्री किया है, उतने तक का आपका कैशलेस यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा हॉस्पिटल में, या तो आपको उस बिल के पैसे मिल जाएंगे। ये इसके की मेजर फीचर्स हैं, और डिटेल्स इसमें काफी सारी होती है जो एकदम फाइन प्रिंट सोच समझ के पढ़ के हमको डिसीजन लेना चाहिए इंश्योरेंस खरीदने के लिए। कुछ बातें जो आप ध्यान में रख सकते हो, इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ या कोई प्रॉपर्टी या जो भी आप ले रहे हो, हेल्थ उसके राइजिंग एक्सपेंसेस के प्रोटेक्शन के लिए। इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। कीप योर इन्वेस्टमेंट्स सेपरेट देन योर इंश्योरेंस। जहां भी दोनों को आप क्लब करोगे वहां वो प्रोडक्ट आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो दोनों चीजों को अलग करिए, सफिशिएंटली आप करिए, बिल्कुल उसको अलग अलग जगह बनाइए उस चीज की आपके पोर्टफोलियो में। ऑलवेज बाय इंश्योरेंस फर्स्ट एंड देन हेड फॉर इन्वेस्टमेंट। जो यंग लोग हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग और यू हैव डिपेंडेंस, फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन यू, प्लीज think about buying this insurance first, and this will come at a very nominal cost when you're young। और बचा हुआ तो फिर आप एक बार यहाँ से आप निश्चिंत हो जाओ, तो फिर ग्रेजुअली आप इन्वेस्टमेंट करते चलिए, बढ़ते चलिए आगे। कीप इट वेरी सिंपल, इंश्योरेंस सेपरेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ये रूल तो बिल्कुल हमेशा आप ध्यान रखिए। जहां भी आप सोचेंगे कि ये पैसा मुझे वापस मिल जाए, वो प्रोडक्ट हिडन पॉइंट है यहाँ पे। फाइन प्रिंट्स आपको पॉलिसी की जरूर पढ़नी है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के पहले। और मस्ट टेक इंश्योरेंस, हम यहाँ फिर से मैं रिएटरेट करूंगी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस। जो अपनी कार्स का या टू व्हीलर्स या कोई भी व्हीकल का लेते हैं, वो तो बाय लॉ इट्स मैंडेटरी, तो वो लेना तो बहुत जरूरी है। just 1 second कल्याणी, 1 मिनट पीछे थोड़ा जो आपने भी बताया। Yeah. So I think this is the key point when it comes to insurance, and I think I request the audience कि आप एक बार फिर से ये पढ़िए key points। सबसे मेन है कि इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन एंड नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कल्याणी ने बताया है। सो इट हेल्प्स अ लॉट इन केस ऑफ क्या कोई भी अगर फैमिली पे कोई मुश्किल आ जाए, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं एक बात यहाँ भी कहना चाहूंगी कि कुछ नोन सर्कल्स में या कहीं से हमने सुना है, देखा है कि अभी पैंडेमिक में जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है और जिनका इंश्योरेंस नहीं था, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट उनको पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में से निकाल कर पे करनी पड़ी है, और पूरा आगे का फाइनेंशियल उनका जो हिसाब किताब था पूरा बिगड़ गया है। तो लेट्स पे मोर अटेंशन कि सफिशिएंटली हम अपने आप को इंश्योर करें यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, moving on. The next question comes कल्याणी। वसीयतनामा जिसे हम कहते हैं estate planning या will, ये भी बहुत important aspect है when it comes to personal finance और family finance। तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो? मैं शॉर्ट में शॉर्ट में इसका इम्पोर्टेंस यहाँ बताना चाहूंगी। दो यहाँ पे लीगल ओपिनियन और लॉयर्स आर द एक्सपर्ट एट दिस एस्टेट प्लानिंग, पर शॉर्ट में इसका इम्पोर्टेंस मैं जरूर यहाँ बताना चाहूंगी, और कुछ मिथ्स है इसके अराउंड कि ये नहीं करना है इसका मतलब ये होता है, तो थोड़ा सा हम उसको क्लैरिफाई कर लेंगे यहाँ पे। पर्पस क्या है, स्टेट प्लानिंग क्या होती है? ये है कि जो भी आपके एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आप एक प्लान बनाते हो, एक विल बनाते हो, उसको विल कहते हैं पॉपुलरली। और बहुत अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पॉपुलर भी होता जा रहा है, लोग इसका इम्पोर्टेंस समझते जा रहे हैं। तो थोड़े हाईलाइट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी, अब हमने वेल्थ इतना सोच समझ के प्लान करके इतने अच्छे से हमने जमा की है, सब अच्छे से किया है, तो ये हमारी इच्छा ये रहेगी कि ट्रांसफर भी आगे भी कोई डिस्प्यूट्स ना हो फैमिली में इसको लेके, और ये ऐसा ही चलता रहे। तो टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स आफ्टर वी मतलब हमारे बाद भी ये बिल्कुल जैसा हमने सोचा था कि सब आराम से शांति से मनी की पैसों की चिंता किए बिना आराम से रहे, तो वो यहाँ पे पर्पस सॉल्व होगा अगर आप विल बनाएंगे तो। और ये स्मूथली ट्रांसफर होंगे जो आपके बनाए हुए एसेट्स है फ्यूचर जनरेशन को, जिसको आपको चाहिए उनको, अब अगर आप उसको देना चाहो तो स्मूथली ट्रांसफर होता है अगर विल बनाई हो तो। और ये अगर कोई बिजनेस है या कोई लोन किसी से ले रखा है तो हम लोग उनको एक्सेस नहीं देते हैं हमारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि हमारी विल सबसे ऊपर होती है। जो हमने विल में लिखा है दैट सुपरसीड्स एवरीथिंग, मतलब अगर विल में ऐसा लिखा है तो बिल्कुल वो वैसा ही होगा। इसलिए विल अच्छे से बननी चाहिए, सोच समझ के आपको बनानी चाहिए, तो वो ध्यान यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे आप खुद की मर्जी से आपको जिसको जैसा डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपके एसेट्स, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे नहीं तो क्या होगा, अगर हम हिंदू लॉज के, अगर हिंदू फैमिलीज है फॉर एग्जांपल, हिंदू के लॉ के हिसाब से जाएंगे, अगर उसमें है लिखा हुआ कि ये सारा विल इन एब्सेंस ऑफ विल नहीं बनाई है, तो ये इक्वली आपके जो भी लीगल हेयर्स हैं, जो बच्चे हैं या वाइफ है या किसी के हस्बैंड होंगे, जो भी फैमिली में, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर आप कुछ अलग तरीका आप चाहते हो, आप चाहते हो कि कितना परसेंट किसको मिलना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या जरूरत की चीज है, किसको क्या नहीं है, किसकी किस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आप ही जानते हो आपके फैमिली के लिए बेस्ट क्या है। तो यहाँ आप अपनी खुद की चॉइस रख सकते हो रादर देन कोर्ट गिविंग ऑर्डर्स कि ये ऐसा ही होगा। और इसमें ये आता है कि आपको बिल्कुल, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने लिए जो भी बच्चे हैं या किसी को हम कोई रीजन से अगर वहां नहीं ट्रांसफर करना है या गलत हाथों में हम नहीं देना चाहते, तो बिल्कुल आप अपने मर्जी से इसको प्लान करिए, बिल्कुल लिख लीजिए, और विल पर आप बिल्कुल ध्यान से काम करिए, मतलब किसका लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर। अब कुछ कुछ मिथ्स यहाँ पे क्या है, जो कुछ गलत धारणाएं जो लोगों के मन में है, क्या है ये? कोई लोग समझते हैं कि ये तो मैं क्या करूंगी, ये तो वेल्दी बहुत पैसे वाले लोगों का काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भी घर हो, घर है, वो तो छोटा है बड़ा है, सबको लिए बिल्कुल अपना घर सब प्यारा ही होता है। मतलब ये जो भी आपका जितना भी एसेट्स है वो आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, और वो आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। तो विल इज फॉर एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल, भले ही वो वेल्थ कम हो ज्यादा हो, पर हर एक को अपने हिसाब से अगर आप विल रखोगे तो अपने जाने के बाद जो स्मूथली उसका ट्रांसफर होगा, और जो आपकी इच्छाएं जैसा आपने सोचा था वैसे फ्रीली एग्जीक्यूट हो पाएगा वो। और ये भी गलत धारणा है कि इतने जल्दी क्या जरूरत है, रिटायरमेंट के बाद सोचेंगे, पर अब आई डोंट थिंक एनी नीड टू एक्सप्लेन दिस फर्दर। इमरजेंसी देख के नहीं आती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो विल बनाने का भी कोई गलत टाइम नहीं है। आज समझ में आ रहा है इसका इंपॉर्टेंस, तो बिल्कुल आज लिखिए इसको। आप बार बार आप चेंज कर सकते हो, इसमें चेंजेस ला सकते हो, आप कुछ एडिशंस डिलीशंस कर सकते हो। हर विल पे एक डेट लिखिए, ये मेरी लास्ट विल है करके लिखिए, तो वो मानी जाएगी लास्ट। अगर आपको उसको रजिस्टर करवाना है कोर्ट में तो वो ऑप्शन है वहां पे। तो बिल्कुल इसमें भी जैसे SIP में स्टार्ट अर्ली था, ये विल भी बिल्कुल वैसा है कि जल्द से जल्द आप करवा के रख लेनी चाहिए, उसमें भले ही बाद में चेंजेस आप करते रहिए।
और ये जो हम सोचते हैं कि नहीं हमारे सब समझदार है, मेरे बाद भी सब अच्छे से मैच्योरली हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को, एसेट्स को, बट मे बी दैट माइट नॉट बी ट्रू। वहां पे डिस्प्यूट्स, अननेसेसरी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं हमारे पीछे, तो व्हाई लीव अ चांस फॉर दैट। फिर और ये भी एक गलत धारणा है कि मैंने नॉमिनी तो अपॉइंट कर रखे हैं इन्वेस्टमेंट में, अब विल की क्या जरूरत है। पर विल में जो आप बेनिफिशियरीज बताते हो कि किसको क्या मेरा एसेट मिलना चाहिए, दैट इज फाइनल। जब तक ये विल पिक्चर में आती है, जब तक वो नॉमिनी सिर्फ केयर टेकर्स होते हैं उस इन्वेस्टमेंट के, दे कैन नॉट यूज दैट मनी। अगर विल में लिखा है कि ये पैसा किसी और को जाने वाला है, तो नॉमिनी हैज टू ट्रांसफर दैट टू द बेनिफिशियरी। तो ओनली नॉमिनेशन इन द इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट इनफ। अगर विल में आप फाइनली, आपकी विल सुपरसीड होगी हर चीज से, विल में जो लिखा है उस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसमें एक आपको भरोसे का एक एग्जीक्यूटर रखना बहुत जरूरी है, जो जाने के, और वो एग्जीक्यूटर को, बेनिफिशियरीज को सबको पता होने चाहिए कि आपने विल बनाई है, वो कहाँ रखी है। एग्जीक्यूटर वो होता है जो आपके जाने के बाद फेयर सारा विल में जो लिखा है बिल्कुल वैसे की वैसे एग्जीक्यूट करके डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा एसेट्स का। तो वो बिल्कुल एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस का होना चाहिए, और वो घर वालों को भी पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स हम ध्यान रखेंगे। तो बहुत ये भी सिंपल है, बहुत कोई बड़ी या एक बहुत टेक्निकल चीज नहीं है विल बनाना। और इसमें लीगल ओपिनियन ले लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अलग अलग लॉज, अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग ये रहते हैं। तो लॉयर्स विल बी द बेस्ट टू गाइड यू अबाउट दिस। और एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि ये जो हम डिसिप्लिन, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी बातें कर रहे हैं, तो ये जो डिसिप्लिन है, जो वेल्थ हमने क्रिएट की है, और ये भी एक प्रकार का जो हमारा जो लेगेसी है, हम विल तो ठीक है फाइनेंशियल एसेट्स पास कर रहे हैं, पर ये हैबिट, और ये जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, मे बी अपने बच्चे हमको देखकर हमसे भी यही सीखेंगे। तो इट्स पासिंग ऑन द गुड हैबिट्स टू द आवर चिल्ड्रन। या जस्ट अ सेकंड कल्याणी, यस वीना, वो स्लाइड रहने देना पीछे वाले। सो आई थिंक यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि नॉमिनीज आर नॉमिनीज जो है वो बेनिफिशियरीज नहीं हो सकते हैं। तो हमें विल में स्पेसिफाई करना होगा कि बेनिफिशियरीज कौन है, राइट। आई थिंक द ऑडियंस, आई मीन आप नॉमिनीज मतलब आप, और ध्यान ये रख दीजिए कि इन्वेस्टमेंट्स में जो मैंने कल्याणी आवाज ब्रेक हो रही है शायद। रख रहे हो नॉमिनेशन और बेनिफिशियरीज रखें तो अच्छा होगा। सो वेरी, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मेरी हो रही है क्या आवाज? करेक्ट, एम आई ऑडिबल? Am I audible? Am I audible? Yes, Veena ji, I think you are audible. Okay. So, कल्याणी, काफी एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए कि राइट फ्रॉम बजटिंग, सेविंग, सॉरी कल्याणी, हमने काफी एस्पेक्ट्स डिस्कस किए कि राइट फ्रॉम द सेविंग, बजटिंग, then investments, asset allocations, and again your risk management, and the way you start early is the better, and again insurance, then another aspect is estate planning. तब ये सब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम कैसे शुरू करें, उसका भी कोई एक गाइडेंस होगा ना कि भाई हमने पहले ये शुरू करना चाहिए, फिर उसके बाद ये पिरामिड को ऊपर ऐसे लेके जाना चाहिए। यस, मैंने कुछ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ डालने की कोशिश की है, ताकि आपको एक अप्रोच बिल्कुल सामने मिल जाए, और आप इसको एकदम इजीली आपको एक गाइडलाइन मिल जाए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी जो पिरामिड में सबसे बेस हम पहले बनाएंगे, आपके कंटिंजेंसी, जो रोटी, कपड़ा, मकान जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, उसके लिए बिल्कुल प्रोवाइड करना है। अगर कोई कारण से, अगर हमारे 5 से 6 महीने भी अगर इनकम ना हुई तो भी हमारा घर चल सके, उस चीज को ध्यान में रखकर यहाँ पे अगर आप इतने फंड्स बिल्कुल आपके हैंडी रखेंगे, आप एकदम आपके पास इजीली अवेलेबल ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में रखेंगे, तो ये सबसे पहले का प्लान होना चाहिए। वो आप कैश में या कुछ बहुत म्यूचुअल फंड्स की कोई स्कीम होती है जो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होती है, वहां पे आप रख सकते हो, जो इजीली आप निकाल सकते हो पैसे बिना चार्जेस के, फिक्स डिपॉजिट। तो ये 5 से 6 महीने का आपका बेयर मिनिमम जिस पे घर चलता है, वो एक्सपेंसेस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसके लिए प्लान करिए। फिर आता है आप सही इंश्योरेंस लीजिए, जो हमने इंश्योरेंस की बात की कि डेथ हो जाए तो फैमिली का पूरा लॉस ऑफ इनकम है,
या मेडिकल हॉस्पिटलाइज हो जाए तो यहाँ राइजिंग हेल्थ एक्सपेंसेस है, तो सबसे पहले इसको कवर करिए आप, तो आगे की इन्वेस्टमेंट के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। ये आप टर्म प्लान्स और हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कर सकते हैं। फिर आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे इंश्योरेंस के बाद, तो इसमें बहुत सारे आपके जो गोल्स है आप डिफाइन करिए, जैसे चाइल्ड एजुकेशन है, घर खरीदना है, या कुछ नहीं है तो बस वेल्थ क्रिएट करनी है सब कुछ है मेरे पास, मुझे और कोई चीज का मंथली एक्सपेंस इनकम में से ही मेरा सब खर्चा मैनेज हो जा रहा है, सारा एजुकेशन वगैरह भी सब हो जा रहा है, जस्ट वेल्थ क्रिएट करनी है भाई, सेव करके रखना है, उसको बढ़ाना है हम पैसों को। तो उसके लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर जो सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ और सीनियर सिटीजन स्कीम्स, सुकन्या गर्ल चाइल्ड के लिए जो गवर्नमेंट ने निकाली है, बहुत सारी स्कीम्स है, आप सोच समझ के उसको वहां पे प्रॉपर, जो हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं उस पर हमको गवर्नमेंट को टैक्स भी भरना पड़ता है, तो टैक्स एंगल भी यहाँ ध्यान रखिए। सब आपके सीए से एडवाइस लीजिए और उसमें टैक्स एफिशिएंट जो अच्छे से आपके पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स बैठे बिल्कुल उस पर भी ध्यान रखिए। पर टैक्स ज्यादा लग रहा है इसलिए हमको ये प्रोडक्ट करना है, वो अप्रोच सही नहीं है। जो आपके पोर्टफोलियो, आपके जो कस्टमाइज आप अपने लिए जो सोच रहे हो, आपकी फ्यूचर लाइफ देख रहे हो, उसके लिए जो सूट होता है बिल्कुल वो प्रोडक्ट आप खरीदिए। रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी स्टार्ट करिए आप, ये सब जो बेसिक लाइफ गोल्स के बाद रिटायरमेंट में हमको कोई भी लोन नहीं मिलता है, बाकी सब चीजों के यहाँ होम लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन मिल जाएगा, पर रिटायरमेंट के लिए प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इंडिया में गवर्नमेंट डजंट गारंटी यू एनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट करके, हम उतना लॉक इन करके या उतने साल वहां इन्वेस्टेड रह के उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे पीपीएफ है, एनपीएस है, ऐसे प्रोडक्ट, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट्स हैं, तो वो सारे आप देखिए वहां पे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग बिल्कुल हर एक इन्वेस्टमेंट को ऑब्जेक्टिव समझ के आप उसमें इन्वेस्ट करिए। फिर फाइनली जैसे हमने अभी बात की, एस्टेट प्लानिंग, आपकी विल बनाइए, वहां पे विल बनाएंगे तो प्रॉपर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन टू नेक्स्ट जनरेशन स्मूथली होगा। और ये आपके विल बिल्कुल जिस बनाई है, जहां रखी है, जिसको बेनिफिशियरीज है, जो एग्जीक्यूटर्स है, उनको प्लीज आप बताइए। फाइनली मैं यही यहाँ बोलूंगी कि आपने बहुत मेहनत की आपका पैसा कमाने के लिए, पर लेट योर मनी ऑल्सो वर्क हार्ड एज यू आर वर्किंग, उसको भी कंपाउंड होने दीजिए, उसको मौका दीजिए, यू विल बी, आई एम श्योर आपके सारे एकदम राइट ट्रैक पे गोल्स सारे आपके अचीव होते जाएंगे। Yes, Can we go back to that slide? yes. This is excellent slide. Excellent. I'll request everyone to note down or take a photograph or whatever, like, because इसमें हर चीज आ गई जो हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे, जो सेशन है इसमें हर एक चीज कवर हो चुकी है। एंड big round of applause Kalyani, because you have explained so well. Thank you so much. Thank you patiently, आप लोगों ने सब सुना। बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हालांकि बस हमने टिप टच की है हर चीज की, इसमें तो बहुत डिटेल्स बहुत कुछ है, पर अगर इतना इम्पोर्टेंस भी अगर हम आज के सेशन से अगर समझ पाए तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर ऑडियंस को कोई सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ये कल्याणी वो एड्रेस करेगी। आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। निकिता, ओवर टू यू। सभी अपने क्वेश्चंस प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हम लोग क्वेश्चंस असेंबल करके 2-5 मिनट में क्वेश्चन एंड आंसर राउंड स्टार्ट करेंगे।
कल्याणी, Yes. एक क्वेश्चन ऐसा आया है मीना कि जी. पहले तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि सच मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज्ड ऑन रेगुलर बेसिस टू गो इन डेप्थ ऑफ ईच टॉपिक. काफी अच्छे कमेंट्स आए एंड एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग. थैंक यू सो मच. अंशु का सवाल है कि व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर अ फर्स्ट टाइमर विद स्मॉल अमाउंट. अब ये डिसाइड होगा कि आपको किस ऑब्जेक्टिव से आप कर रहे हैं. आई एम अज्यूमिंग आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आपको 5-10 साल आपको इन्वेस्ट करना है, सिस्टमैटिकली छोटी अमाउंट्स में करना है. तो यस, अ वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP इज बेस्ट सूटेड फॉर सच इन्वेस्टर्स. आप अमाउंट इसमें कम से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं और लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो यहाँ अच्छा वेल्थ क्रिएशन होता है ऑन द अजम्पशन दैट यू आर गोइंग टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और एक नेहा का सवाल है, वेयर टू गेट टू नो अबाउट ऑल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अवेलेबल बाय गवर्नमेंट. ये आप इस पे देख सकते Government हैं. हाँ, ये सुकन्या समृद्धि, NPS और ये सीनियर सिटीजन स्कीम्स, PPF, सारे पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे बहुत अच्छा इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. यू कैन विजिट दैट एंड सारे उसके फीचर्स, डिटेल्स, टैक्सेबिलिटी, इंटरेस्ट सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पे. और एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि ये हमें इन डेप्थ नॉलेज लेना है, ये सेशन, ये जो आज का सेशन हुआ है, तो हम कैसे और इसको पूरा इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, कोई जरिया है? मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे अगर कोई इसके आगे और समझना. मुझे लग रहा था ये मैं बहुत टेक्निकल हो रही हूँ. आई डोंट नो हाउ द लेडीज मस्ट बी रिएक्टिंग टू इट, बट इफ दे आर कीन ऑन लर्निंग इट फर्दर, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए कि हम इस सीरीज में वर्कशॉप्स हम लोग रिसेंटली स्टार्ट किए हैं. ऑलरेडी 2 वर्कशॉप्स हो चुके हैं. पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा है. उसमें ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में एक एक, जैसे बैंकिंग है उस पर इन डेप्थ हम लेते हैं, और स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इक्विटी, डेट, म्यूचुअल फंड्स, विल प्लानिंग, टैक्सेशन, सारा डिटेल में. तो ये वर्कशॉप्स हमारे हम लेते हैं. जून 12 से हम और एक नया वर्कशॉप का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. और अदरवाइज भी अगर ये वर्कशॉप आप करना चाहो तो वेलकम. अदरवाइज भी काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप प्रॉपर एडवाइजर के थ्रू समझो, या इंटरनेट पे नॉलेज बेस्ड सर्च करिए. आप एक डायरेक्शन लेके, एक पर्पस लेके करिए तो आपको काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सो और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल हियर एंड नॉमिनी? नॉमिनी तो आपने जिसको अपॉइंट किया है, जो इन्वेस्टमेंट में आपने एक रहता है कि एक सेक्शन है जहां नॉमिनी अपॉइंट करना है कि मैं अगर नहीं रहूं इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने तक तो कौन होगा. लीगल हेयर वो रहेगा, मे बी आपके वाइफ और किड्स यूजुअली, या स्पाउस, टू करेक्टली से स्पाउस एंड किड्स, दोज आर अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, हिंदू लॉ, वो लीगल हेयर्स रहते हैं. पर नॉमिनी में आप अगर आप परसेंटेज वाइज आप अगर अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हो तो आपको ऑप्शन है वो. लीगल हेयर्स में अगर लॉ के हिसाब से जाएगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो पर विल में और एक ऑप्शन है जो बेनिफिशियरीज ऑफ द विल है, उसमें जो आप डिसाइड करोगे जिसको किस एसेट का कितना परसेंटेज मिलना है, दैट इज फाइनल. नॉमिनेशन भले ही आपका कुछ अलग भी रहा अगर विल से, तो भी द विल विल बी द फाइनल थिंग दैट विल बी कंसिडर्ड. एक बेसिक कॉमन वुमेन का क्वेश्चन है, कि few saving tips which women can follow in their day to day routine. कोई सेविंग ये तो बिल्कुल यू आर द बेस्ट जज. जो बजटिंग है बिल्कुल आप सीरियसली इसको थोड़ा सा लीजिए. भले ही हर खर्चा लिखना जरूरी नहीं, इट्स अ टीडियस टास्क, बहुत कम लोग वो कर पाते हैं. पर आप मोटे मोटे खर्चे भी आप लिखना चालू करो. और आपको अगर आपने ये थोड़ा लिया है एज अ मतलब आपने गोल लिया है कि मुझे कुछ सेव करके कुछ SIP स्टार्ट करनी है समथिंग, तो बजट करके आप कितना सेव कर पाओगे आपको अपने आप दिखता जाएगा कि ये खर्चा मैं यहाँ बचा सकती हूँ. जो हर जगह बिग बिलियन सेल्स या ऑनलाइन सेल्स लगती है, मे बी नॉट एवरी टाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन सच सेल्स. इम्पल्स बाइंग, कोई भी चीज खरीदने के पहले आप 2 बार सही में सोचिए कि ये जरूरी है क्या. एक थोड़ा पॉज लीजिए, एक दिन रुक जाइए उस चीज खरीदने के लिए. ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे भी आपको उसकी जरूरत लग रही है तो यस, गो एहेड एंड बाय इट. पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, आई कैन पोस्टपोन दिस परचेज. तो थोड़ा छोटा छोटा करके आप बिल्कुल सेव कर पाएंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेव तो आप कर लेंगे बट उसको फाइनेंशियल सिस्टम में लाइए, बैंक में लाइए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो ही आपको आगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे अपार्ट फ्रॉम फिजिकल गोल्ड. परफेक्ट.
So could you tell us how to choose asset allocation at various stages? Various stages, I mean, you mean by ages, right? Yeah, The the age life of the investors. of the Yeah. investors. तो हर एक स्टेज पे एक अपनी प्रायोरिटीज, अपनी ऑब्जेक्टिव्स अलग रहते हैं. जो यंग है उसको मे बी आगे घर बनाना है या कार लेनी है, उस हिसाब से वो सोचेगा. जो मिडिल एज्ड आ गए हैं उनको आगे बच्चों के एजुकेशन का रहेगा, या ऐसे हर एज में अलग है. तो एक थंब रूल यहाँ पे होता है, 100 माइनस योर एज, that portion you can allocate to equity investments. By equity, I mean, I'm assuming that the ladies who are asking the questions are non-finance background. So keep it very simple. Buy a nice equity mutual fund. आप उसमें जितना portion रखना है आप आपके एज के हिसाब से डिवाइड करिए. और it also depends on many factors कि आपके secondary income और कुछ आ रही है क्या. तो एज वाइज जैसे जैसे यू रीच टूवर्ड्स रिटायरमेंट, आपका आप इक्विटी पोर्शन धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि इक्विटी इज बाय नेचर वेरी वोलेटाइल. उसके रिटर्न्स ऊपर नीचे होते हैं. तो ऐसा ना हो कि जब आपको गोल के पास आप पहुंच रहे हो और तब बहुत वोलेटिलिटी हो और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाए. तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको रीबैलेंस करते रहिए. इक्विटी से कभी कभी हमको फिक्स्ड इनकम की तरफ थोड़ा स्विच करना पड़ता है पैसा. तो आप बिल्कुल ये नॉलेज के साथ इसको 2-3 हर रोज ट्रैक करने की जरूरत नहीं है. 1-2 साल में इसको देखिए, रिव्यू करिए, सही प्रोडक्ट्स है ना. और एज एज प्रोग्रेसेस, एज यू कम क्लोजर टू योर फाइनेंशियल गोल्स, थोड़ा उसको सेफ्टी को बढ़ा दीजिए, आप वोलेटिलिटी को अपने पोर्टफोलियो में कम कर दीजिए. Okay, so I think we are coming to the closure of this session. I think time permit नहीं कर रहा है आगे के questions लेने के लिए. So I'll hand over to Nikita. MVPM की ओर से प्लीज आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू, वीना जी एंड कल्याणी जी. बहुत ही सिंपल तरीके से, अवॉइडिंग ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल जार्गन्स, आपने बहुत ही सिंपल वे में फाइनेंशियल प्लानिंग को समझाया है. आई एम श्योर सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा. And I'm sure they will all come back to you for further details. It's just a matter of some time. Thank you. I would also like to thank. Yes, I would also like to thank Lion Dr. Ishwar Mundra, District Governor, Lion Kumar Randad, Coordinator, Lions Image and the Lions Image Branding Chairman, who has canvassed our program amongst Lions members. And thank you Gaurav ji Gattani for broadcasting of webinar email, and Mahesh Seva Sangh Pune for promotion of the webinar. Thank you everyone. Thank you all the participants for attending this webinar. Hope it was very beneficial to all of you.